कुछ नहीं कर रही, भी कुछ नहीं कर रही, केवल सर को फॉलो कर रही हूँ। That is also one thing ना कि आप कुछ तो कर रही हैं. You are following somebody. Yes, she's slowing down. Yes, slowing down के phase में चल रही हो. Yeah, great. So Kamna, you are from Jaipur, right? हाँ जी। आप जयपुर से हैं? That's right. Yes, Shweta, great to have you here. Yes, hello sir. How are you? Great, wonderful, Shweta, wonderful. We have just started the introduction itself, and you are here. Great, wonderful. So, Thank you. Kinshuk, are you there? Hi, Hi, sir. Shweta. Good Yeah. evening. Yes. Good evening. So, okay, that's great, wonderful. So, पिछली बार श्वेता आप नहीं थे ना पिछली बार? नहीं सर, पिछली बार नहीं थी मैं। नहीं, Shweta was not there. श्वेता नहीं थे ना, कोई बात नहीं. So yes, we have started from Kamna. So Kamna introduced herself. So she's Kamna from Jaipur, and she has joined the group for last few months. Group में active हैं, लेकिन Feeling Friday में शायद आप लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है, right? And she herself is a healer, and nowadays she's on the कहते हैं ना वो aligned अपने साथ align कर रही हैं अपने आप को, and that's nice. So she's on a slowing down pattern. Wonderful to have you. Right. So now Rashmi. Thank you जी. Thank you, Kamna. Yes, Rashmi, introduce yourself. Yeah, good evening, everybody. I'm Rashmi from Guwahati. I have been associated with this EFT group since 1 year, and I have 2 daughters. One is pursuing her bachelor's, and the younger one is in class 10. Great. Okay, so you are nowadays in Guwahati, right? Yes, sir. That's great, wonderful. So we have a connection. So for all of you, we have a connection with Rashmi for last so like kab se, again it's 1 year only, and I have seen a lot of different phases of Rashmi itself, but herself. But जैसे जैसे आप उनको जानेंगे वैसे वैसे आपको और समझ में आएगा कि what she is actually. But glad to have you, Rashmi, here. Wonderful. Keep coming. That's great. Thank you, sir. Shweta, can we have you? Yes sir. हाँ, so सर एक बात मुझे बताइए, मुझसे जब भी कोई पूछता है इंट्रोडक्शन, अब मुझे मेरे नाम के अलावा मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं, मुझे आप ये बताइए सबसे पहले. Very nice. It's a very nice question. So ये मैंने भी फेस किया, तुम्हें भी फेस करना है, हर किसी को फेस करना पड़ता है कि इंट्रोडक्शन क्या दे. जी. So ये ना प्रैक्टिस से आता है. कहीं जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं जाना है आपको, हर जगह की इंट्रोडक्शन अलग अलग होती है, लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन सेम होती है. फॉर एग्जांपल मेरा नाम ये है, आई माय नेम इज दिस, आई डू दिस, और आई एम दिस फॉर एग्जांपल. सो नॉर्मली अगर आप सोच, सो इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन श्वेता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हर जगह पे आपको देनी तो पड़ती है, राइट? बट सपोज करो आपको किसी ने जानना है, तो ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो आपके बारे में जान के आपको समझ सकता है कि यस यू आर दिस. वो चीज आप हर जगह बोल सकते. ओके. अब सर नॉर्मली इंट्रोडक्शन में लोग क्या बोलते हैं, माय नेम इज दिस, है ना, अपना ऑक्यूपेशन बता देते हैं. अभी मैं जॉब करके छोड़ चुकी हूँ, मेरा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, फाइन. अभी जो मेरी डिग्रीज है वो कि भाई जमाने हो गए, भूल भी गई, तो उसका भी कोई यूज नहीं है. अब मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं क्या बोलूं मैं. वाओ. सो ये डिग्रीज और ये जो चीजें है ना, these are actually not introduction, these are resume kind of, you know, इंटरव्यू, ये इंटरव्यू में आता है, ये यहाँ पर नहीं आता. ये इंटरव्यूज में आता है कि मैंने ये पढ़ा है, मैं ये है. अब भैया मेरा तो कुछ भूल गई मैं जस्ट मैथ्स थोड़ा बहुत आ जाता है डेली लाइफ का, that's all. So it's actually it's not introduction, it's an interview setting, you know what you do. So Kinshuk know better, we interviews अभी देने जाएगी वो, तो अभी तो उसकी स्टार्टिंग हुई है लाइफ की. So interviews में ये पूछा जाता है, but यहाँ पर the best introduction I can say, I have seen people, you know, Rashmi देती हैं, आप भी देते हो कि I am this and I have these kind of interests and passions. I am a mother of someone, or I am a wife, or I was having a profession, but nowadays I'm managing my home. That's it. You know,
इससे एक आइडिया मिलता है कि हु इज श्वेता। पॉइंट। Right, right. तो ये Okay, एक ऐसा so सो या If you are passionate about family members, you can always describe them. यस एब्सोल्युटली, Uh, पैशन तो बहुत जरूरी है। अपने आप को डिस्क्राइब कर दीजिए, फैमिली मेंबर्स में जो हैं उनको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दीजिए। That's it. but again, family members is not our own introduction. No? नहीं, So फैमिली से ही तो हम बने हैं एक्चुअली। वी आर आल्सो पार्ट ऑफ देम ओनली ना, so they are also like we are grooming part them. of them, Oh but yes. we are very much individual. Huh? The family members are part of our life. They are integral part, but they are not. मैंने हम वो individual नहीं है, वो हम नहीं है. So it is Got the like point, कि got the point. passion So- it's good कि आप passion अपना बता सकते हैं कि भाई मैं ये हूँ और मैं इसके लिए passionate हूँ, मैं ये काम अभी कर रही हूँ। जैसे सर अब लाइफ कोचिंग करते हैं, वो उनका पैशन भी है, काम भी करते हैं उसमें, सो इट्स अमेजिंग फॉर हिम। अब मेरा ऐसा है, ठीक है, अभी मैं घर में बैठी हूँ, अपना थोड़ा लाइफ जो भी मुझे फॉल्ट्स दिखते हैं मेरे अंदर में, वो समेटने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सो देखो फिर है ना, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा समेटने समुटने में थोड़ी हमारी आलस भी आ जाती है, तो फिर वो भी पॉइंट गड़बड़ाया जाता है, हाँ, आलसी है और क्या। राइट। एक्चुअली श्वेता आज का सेशन ना इसके ऊपर है, आज का सेशन बड़ा मजा आने वाला था, बिकॉज़ इसी के ऊपर है आज का सेशन। सम पॉइंट्स आई एम पुटिंग इट हियर। What I feel महेश जी कि when you go for an interview, then आप सिर्फ अपने बारे में बताते हैं, but when you introduce yourself, तो आप थोड़ा बहुत अपने फैमिली के आसपास के लोगों के बारे में भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर देते हैं। So Yeah, that I is understand. So Rashmi, you understand that many I people are feel. comfortable talking about family, many people are not comfortable about family. Yes, you know the temperament Not also, and you know the yes. situation also. So it's good that Yeah. we can talk about family. But suppose करो किसी को family के बारे में ज्यादा बताने का मन नहीं है, तो हम उसको भी बोलते हैं okay, don't tell. नहीं बताओ अपने family के बारे में. No, it's okay. It's up to that individual actually. Yes. So कि basically, how it's a comfortable that person is. yeah. So basically, Shweta and this Rashmi, you both are right. And we are so coming to there. आज का session इसी के ऊपर है because so we have Megha also, but he is joining. So Kinshik, we are coming to you. So your introduction. Hi, my name is Kinshuk. I'm from Dehradun, and I am presently working on myself, so to say, to sum things up and trying to improve myself for the rest of my life. Oh yes. So ये brief जितना size है उसका उसी size के हिसाब से उसने brief दे दिया. So this is a good brief from Kinshuk, and that's it. So that's it. But Shweta, your point taken. आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, and I think we can get something out of there today because बात तो बड़ी छोटी सी शुरुआत होगी लेकिन बहुत गहरी है, so कोशिश करेंगे इस पे डिस्कस करने की, समझने की. So Megha, are you there? Megha, can we have you? अच्छा ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, एक मिनट. मेगा का अगर विजुअल आता है तो मजा आ जाएगा बिकॉज पेड़ के नीचे बैठी होती है, बहुत बड़ा पेड़ है. Yeah, she is with peacock background में पीकॉक होते हैं बैकग्राउंड में. अभी अगर वहीं पर ही है तो मेघा, आर यू देयर? Hello. यस. नो पीकॉक, नो पेड़. तुमने गलत साबित कर दिया हमें. ओके. पर इनका बैंडविड्थ का चक्कर रहता है. मेगा बैंडविड्थ कम है, वी आर नॉट एबल टू सी यू, यू आर फ्रीज. आवाज भी टूट रही है. हाँ, तुम वाईफाई पे नहीं हो, मोबाइल पे हो, राइट? मोबाइल नेटवर्क पे हो ना? Yes, sir. So can you come on Wi-Fi if possible? Let me try. Yeah. Because we don't want cut. We want you flowing like anything, right? So yes, Kamna is on roof. Yes, roof पे हो कामना, छत पे अपने घर की. Yes, कामना छत पे है, किंशु घर में है, and I'm in my office. Wonderful. So yes, we'll have Megha. आज फीलिंग फ्राइडे में दोबारा मिल रहे हैं. थैंक्स फॉर यू फॉर कमिंग हियर बिकॉज ये तो एक बार और इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है.
feeling Friday किस लिए बना हुआ? So yes, Megha, you are now fluent. So we Yes, are all yes. introducing ourselves. You can briefly introduce Sir, yourself, please. Congratulations for the new office. Oh, thank you so much. Thank you so much. And we can have a brief introduction of Megha also for all of us. Yes, Megha. Okay. I have been associated with Mahesh sir from a very, very long time, and I have been doing EFT from the past 1 year now. Yes. And I really, I'm feeling there are a lot of benefits from the EFT that I'm learning, and I'm also recommending it to other people. So it's Yeah. a very, very, very good technique. And there are other things also, the changes that I have felt that like continuously I've been doing it from 1 year. So that way. Yeah. Yeah. So Megha ने ये नहीं बताया कि मेघा कहाँ से है, मेघा नहीं बताया कि बच्चे कितने हैं, मेघा नहीं बताया कि क्या करते हैं. So मेघा दोबारा बताएंगे. Practice. Oh yes. Okay, I'm a mother. I have 2 kids. Yes. One is 6 and one is 8. And और किंचु को मेघा में ज्यादा फर्क Family. दिखता नहीं है वैसे, लेकिन she is elder. Yes, she is senior. So by the way, Megha is connected with me for last more than 6 years. We are connected. 15 we first met, right, Megha? It is 14, 15. So now it is more than 7 years. So we have people here very new, and we have people. So sometime you also meet some people who are connected with me for last 10 years and now 12 years. So the highest one is 14 years in this session itself. 14 साल बहुत बड़ा टाइम होता है. But yes, so why this feeling Friday is there? जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने भी वो समझेंगे. ये इसलिए है बिकॉज ये एक ऐसा सेशन है जहां पर आप बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी फियर के, बिना किसी बायस के अपनी बात रख सकते हैं. वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, and this is a weekly session. You can join it from any part of the world, and that जो भी यहाँ पर हमारे ग्रुप में लिविंग इनसाइड जो ग्रुप है उसके अंदर कई लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम अपने काम पे होते हैं इसलिए नहीं आ पाते, बट वो देखते हैं, वो कंटिन्यूस रहते हैं. सो उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड होके जाता है. बट द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज, सो व्हाट वी फाउंड आउट इज कि वीक में एक दिन एक ऐसा टाइम होता है, यानी वीकली टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपने आप को रीअलाइन कर सकते हैं. मोर देन अ वीक मींस 10 days, 15 days इज मच मोर. लेस देन अ वीक इज मच लेस. फॉर एग्जांपल 3-4 days. बट वीक इज अ वेरी ऑप्टिमम टाइम. बहुत ऑप्टिमम टाइम है वीक का, इसलिए वीकली हॉलीडेज भी होते हैं, राइट? सो वीक हमने क्या सोचा कि एक दिन ऐसा जब आप अपने आप को रीअलाइन कर सकें. नाउ व्हाट इज दिस रीअलाइनिंग इज? So for all of us benefit is we are human beings. हम किसी भी रास्ते पे चलेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी समझेंगे, लेकिन हमारा डेविएट होना, उस रास्ते से डेविएट होना, ये मान लीजिए कि इट्स इम्पेरेटिव, वो होगा ही होगा. ऐसा नहीं कि आप चल पड़े तो अब आप एक बार आपने पढ़ ली कोई किताब, एक बार आपने कोई सेशन ले लिया, आपने बस यू आर ऑन द वे. ऐसा कभी नहीं होगा. द थिंग इज, सपोज करो एक लाइन है, एक हाईवे है जिसपे हम चल रहे हैं, मुझे आगे जाना है. मैं हमेशा वो कभी नीचे पगडंडी से उतर जाऊंगा, कभी खेतों में चला जाऊंगा, कभी गलियों में चला जाऊंगा. बट अगर मुझे पता है कि हर एक हफ्ते में एक दिन ऐसा है जहां मैं अपने आप को रियलाइन कर सकता हूं कि वेयर आई एम. सो इट्स अ स्टोरी जो आपने बहुत लोगों ने सुनी होगी, कि स्टोरी नहीं है, इट्स अ फैक्ट दैट हाउ दीज ऑल नाविक सेलर्स अपना रास्ता कैसे देखते थे जब कंपास नहीं होते थे पुराने जमाने. वो कैसे देखते थे कि समुद्र में उन्हें जिस दिशा में जाना उस दिशा में चल रहे हैं कि नहीं. तो क्योंकि कंपास तो था नहीं उनके पास, और अगर वो एक दिशा लेके चलते हैं जिसमें कि सूरज शामिल है, कि उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, अगर सूरज में बादल आ गए तो क्या. सो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि वो नहीं समझ पाते थे, और सूरज से आप उतनी दिशा का पता नहीं कर पाते, तो वो तारों का इस्तेमाल करते थे. स्टार्स आर एक्चुअली नेचुरल कंपास, यू कैन से दैट, नेचुरल कंपास होता है वो. तो वो जो स्टार्स को देखते थे, उस स्टार्स से वो बनाते थे अपनी पोजीशन. लेकिन तब क्या, जब बहुत टाइम तक स्टार्स पे बादल आ जाए या आपको दिखे ही ना रात क्या होती है, तब वो क्या करते थे, दे सेल फ्रॉम देयर इंस्टिंक्ट, चलते रहते थे. और जैसे स्टार्स आते थे वो दोबारा अपने आप को रियलाइन करते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप को पाते थे वो ऑफ ट्रैक हो गए, कहीं और निकल चुके हैं. एंड देन दे अगेन सी द स्टार्स एंड गो बैक.
टू दैट लाइन। सो यहाँ पर भी ये वीकली जो सेशन है ये एक तरह से आपके लिए एक गाइडिंग, हमारे लिए, मेरे लिए एक गाइडिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है, जहां पर, और यू कैन से इट्स लाइक अ स्टार, जहां पर आप अपने आप को फिर रियलाइन कर सकते हो कि आर वी ऑन द राइट डायरेक्शन। नाउ राइट डजंट मीन राइट फॉर मी और यू, राइट फॉर मीन्स इज व्हाट, जिस पे हम चले थे उस पे, उसके लिए हम है, उस पे हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो वीक में एक बार जब हम मिलते हैं, जब हम देखते हैं, तो हम अपने आप को अलाइन कर रहे होते हैं। तो दिस इज फॉर अलाइनमेंट। द पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप, दिस सेशन इज ओनली अलाइनमेंट एंड विद सम इनपुट्स जो भी आपसे आती हैं, जो मेरे से आ सकती है। सो पिछले एक साल से फीलिंग फ्राइडे चला था, बीच में 2-4 हफ्ते डिसकंटिन्यू हुआ, बट इट्स बिकमिंग नाउ इट्स बिकमिंग, सो फॉर मी, because we are all individuals, for me feeling Friday is my alignment. It's not basically your alignment, it's my alignment. So अगर कोई भी नहीं होता तभी मैं फीलिंग फ्राइडे पे होता, राइट, क्योंकि दिस इज माय alignment. हाँ, आपको सबको इन्विटेशन जाता है, अगर आप उस समय फ्री होते हैं तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी, बट इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर एनीबडी एंड इट्स नॉट रूल कि यू हैव टू कम देयर, बट दिस इज द अलाइनमेंट, क्योंकि ये मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। और हर एक फीलिंग फ्राइडे में वी आर ऑब्वियसली हैविंग सम क्वेश्चन आंसर सेशन आल्सो, जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, और कुछ ऐसा टॉपिक जो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स उसमें मेरा एक एक्सपीरियंस भी शामिल होता है, सो दैट हो सकता है वो आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट हो एज ए ह्यूमन बीइंग। जैसे पिछले हफ्ते जो हमारा फर्स्ट इस साल का फीलिंग फ्राइडे सेशन था, उसमें हमने बात की थी रीडिंग हैबिट्स की, हिडन benefits, or you can say the hidden miracle of reading क्या होते हैं, उसकी बात की थी। और अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जो उस पे है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, और आपके हमने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं कि रीडिंग में 5 ऐसे हिडन बेनिफिट की हमने बात की थी जो किसी और मीडियम में नहीं पाए जाते। सो सम पीपल आस्क अबाउट कि रीडिंग से क्या होता है, सम पीपल से आई कांट रीड, दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, व्हाटएवर यू आर फीलिंग इज गुड, बट द क्वेश्चन इज वंस यू अंडरस्टैंड रीडिंग का क्या महत्व है, रीडिंग में होता क्या है, और ये क्यों कहा जाता है कि ऑल द लीडर्स आर रीडर्स, ये क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं जो पिछली बार हमने बात की थी। रीजन थे कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी का पूरा निचोड़ उस बुक में डाल देता है और आप उसको 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 1 महीने में पढ़ लेते हैं। सो यू आर नाउ इंक्रीजिंग योर मैच्योरिटी थ्रू अंडरस्टैंडिंग। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी जिंदगी आप सब किस चीज को समझने में लगा लें, सो आप उसको समझ पाते। ऐसी बहुत सी चीजें हमने डिस्कस की जो आप देख सकते हैं। उसी सीरीज में आज जो एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ना, वो बहुत मेरे दिल के करीब है, और मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं 10 साल से। सो 10 ईयर्स, डिकेड हो चुका है पूरा, एंड इट इज अ सेंटर पार्ट ऑफ माई कोचिंग। सो द सेंटर पार्ट इज नाउ, सो आई हैव अ सिस्टम ऑफ माई कोचिंग। जो लोग यहाँ पर कोचिंग में हैं वो लोग समझते हैं, उनके साथ वो सिस्टम डिस्कस नहीं होता, लेकिन पैटर्न वही, मीनिंग सेंटर्ड कोचिंग। तो जो मेरी कोचिंग प्लेटफॉर्म है उसका नाम है मीनिंग सेंटर्ड पर्सनल कोचिंग सिस्टम। इट्स अ सिस्टम, मीनिंग सेंटर्ड है। और वो क्या है मीनिंग सेंटर, उसी की बात करने वाले आज, कि जब हम सब लोग इंडिविजुअल हैं, सब लोग अपने तरीके से काम करते हैं, चाहे आप होम मैनेज कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मदर हो, चाहे आप वाइफ हो या हस्बैंड हो, हम सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन हम सब लोगों का एक मकसद है लाइफ में कुछ। अब श्वेता, आपकी बात पे आता हूं। जब वो मकसद किसी के सामने होता है, कोई भी XYZ, तब उसका लाइफ एक अलग तरीके से चलता है, और जिसके सामने मकसद नहीं होता है उसके लाइफ एक अलग तरीके से चलता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लॉस्ट, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, आज मेरा इंटरेस्ट इस पे, मैं ये बता रहा हूँ, कल मैं बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ, दूसरे बोलते हैं तो मुझे लगता है मुझे भी कुछ बोलना है, बट समझ नहीं आ रहा। तो ये समझ ना आने वाली स्थिति जो है ना, इसको आप ऐसे मान के चले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप रुके हुए हो, आप बिजी हो, आप बहुत बिजी हो, सुबह से शाम तक टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे टाइम जा कहाँ रहा है, मैं कर क्या रही हूँ, क्यों कर रही हूँ,
किस लिए कर रही, ये क्वेश्चन आते ही आपके सारे तोते उड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं ना ये क्या है। सो इसको थोड़ा सा ना एक विजुलाइज करते। आप में से किसी ने हैमस्टर का नाम सुना है? हैमस्टर सुना है? हैमस्टर की हमने कई लोगों से कोचिंग में तो बात होती है, बट हैमस्टर हैमस्टर ही होता है ना, वो जो चूहा होता है। एक हैमस्टर इज अ काइंड ऑफ यू कैन माउस, जो ट्रेंड माउस कर सकते हैं, वो ट्रेन कर सकते हैं माउस, राइट। हैमस्टर यही होता है। और कोई एक्सप्लेन कर पाएगा हैमस्टर को कोई अच्छी तरह से, अगर मेरे से ज्यादा बेटर जानता है? जैसे गिलहरी होती है ऐसे माउस होता है, ऐसे हैमस्टर एक जाति है उसकी, यू नो, एक काइंड। हैमस्टर को ट्रेन कर सकते हैं, पालते भी है लोग उनको अपने पास। और हैमस्टर व्हील एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं हैमस्टर व्हील। वो ना हैमस्टर को खेलने के लिए बनाया होता है। कैसे? आप, वो एक व्हील होता है, ऐसे ऐसा व्हील होता है, बड़ा सा व्हील होता है, उस व्हील पे उसको खड़ा कर देते हैं हैमस्टर को, और वो चलता है। तो व्हील घूमता है, वो चलता रहता है, व्हील घूमता रहता है। ये उसका खेलने का तरीका है। अब अगर आप उसको दूर से देखो हैमस्टर को, तो वो चल रहा है और व्हील घूम रहा है। वो पूरे दिन चलता रहता है और व्हील घूमता रहता है, राइट। कभी वो तेज चलता है, कभी वो स्लो चलता है, लेकिन वो उसी व्हील में घूम रहा है। सो आपको लग रहा है कि बहुत बिजी है, हैमस्टर को भी लगता है मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा है, चल रहा है। एक मिनट के लिए भी रुक नहीं सकता, क्योंकि रुका तो गिर जाएगा, रुक नहीं सकता वो, ही इज ऑन दैट थिंग। तो वो चलता रहता है। अब उसको विजुलाइज कीजिए, जब हमारी लाइफ में मकसद नहीं होता है, तो हम भी हैमस्टर की तरह हो जाते हैं। सो दैट्स इट्स एग्जांपल। वी आर जस्ट रनिंग, कभी फास्ट कभी स्लो, बट वी आर रनिंग इन सर्कल्स। और जब रुक भी जाते हो ना, तो आपको लगता है मैं, अच्छा, मैं सुबह चलना शुरू किया था मैंने, और अभी तक मैं चल रही हूँ, 12 घंटे हो गए, मैं पहुंची कहाँ? कहीं नहीं। यू आर देयर इटसेल्फ। ये होता है जब लाइफ में मीनिंग नहीं है, लाइफ का मकसद नहीं है, तो वी आर हैमस्टर व्हील। सो मीनिंग का होना, यानी कि मकसद का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। चाहे यहां पर हम बात करें किंशुक की, जो कि शी इज एंटरिंग इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, अबाउट टू एंटर। चाहे हम बात करें यहाँ पर कामना की, या रश्मि की, या श्वेता की, जो कि लाइफ में काफी एक्सपीरियंस है उनके पास, इवन मेघा, इवन टॉक अबाउट मी, जो इस प्रोफेशन में काफी टाइम से। वी ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट वी वांट टू डू समथिंग विद आवर लाइफ। हमें अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना है। मैक्सिमम लोगों को कुछ करना होता है अपनी जिंदगी के साथ, लेकिन देखने में ये आया, रिसर्च में ये आया, more than 670% people are like hamster. They want to do something, they are doing something, but they don't know what to do actually, and they are having, so क्या होता है, पहले व्हील छोटा होता है, फिर वो व्हील बड़े होते जाते हैं, लेकिन व्हील तो व्हील ही है। व्हील तो व्हील ही है। जैसे जॉब जॉब ही है, चाहे आप एक सेल्समैन से शुरुआत करके वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, बट जॉब 9 to 5 में चलती है, जॉब जॉब ही है। तो वो व्हील जो है ना, वो व्हील जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जब तक आप उस व्हील से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक वो राउंड 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 ही रहेगा। सो आज का जो जो चीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ना, वो डिस्कशन पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्या है वो मकसद, क्या है वो मीनिंग, क्या है वो चीज, जिस दिशा की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ऑल वी हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड एंड कॉन्टेम्पलेट। आज का वीक आपको मिलेगा, आप उसको सोच के देखिए कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, मीनिंग। ये जो मीनिंग मैं बोल रहा हूं ना, इस मीनिंग को समझना कि मीनिंग का मतलब होता है मेरी लाइफ का मतलब क्या है। एक होता है मकसद, एक होता है मतलब। सो एक होता है गोल, एक होता है मीनिंग। सो गोल इज शॉर्ट टर्म, यू कैन से दैट, बट उस गोल को अचीव करने में अगर मीनिंग नहीं है, तो आपकी लाइफ में एक ब्लैंक रहेगा। सो इफ आई गिव यू एन ऑप्शन, सो मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि जब हम बात करते हैं मीनिंग की, मेरी लाइफ का मतलब क्या है, तो आप कैसे देखते हो? जस्ट शेयर योर थॉट्स। अभी तो मैं सिर्फ आपके सामने रखा ही है, हाउ यू सी इट। मतलब क्या है मेरी जिंदगी का, इसका मतलब क्या है? किंशुक, योर वॉइस। सर मैं सोच रही थी लाइक मतलब क्या होगा लाइफ का, बट
मैं यही सोच पाई कि शायद जो चीजें हम देखते हैं या जो चीजें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं, उस चीज का हम क्या मीनिंग एसोसिएट करते हैं अपनी लाइफ में और क्या परसीव करते हैं उन चीजों से, और हमारे लिए क्या चीजें इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या मैटर करती हैं, क्या नहीं है। आई थिंक Yeah. शायद यस, you're close Kinshu. मींस अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि मैं चीजों का मतलब निकाल रहा हूँ, सो बेसिकली इसमें एज बहुत फैक्टर का काम होते हैं, लेकिन छोटा सा ऐसे देखे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग समथिंग, जैसे मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका काम है, या आपका इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यू में बोलते हैं किंशुक से, किंशुक हमारे पास एक जॉब है एंड इट्स अ हाई पेइंग जॉब। किंशुक बोलती है अच्छा क्या करना है मुझे? आपने क्या करना है, सुबह आपको एक ना फावड़ा देंगी। फावड़ा क्या होता है? वो मिट्टी खोदने वाला, राइट? तो आपने वहां ग्राउंड पे जाना है, मिट्टी खोदनी है, गड्ढा, और शाम को भर देना उसको। दैट इज योर जॉब। सो हाउ हैप्पी यू आर किंशुक? इट्स लाइक बैक टू स्क्वायर वन, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट। लेकिन उसमें कुछ आपको पेमेंट मिल रही है, आपको तनख्वाही मिलेगी, बट करना कुछ नहीं है। सुबह 9 बजे आना है, रात को 8 बजे तक यही करना है। That's your एक job. पॉइंट के बाद तो क्वेश्चन करेगा इंसान उसको कि इससे हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग विद बाय रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। Yes. अब क्या है, उसका कोई मकसद नहीं है, कुछ मतलब नहीं है उसका आपका। उसमें आप कहते हो कि ठीक है, शुरुआत में आपको अच्छा लगता है, मेरी पॉकेट में निकल जाएगी, कुछ टाइम तक अच्छा लगता है, उसके बाद आपको लगता है मैं कर क्या रही हूँ, वेयर आई एम, मेरा इसमें मकसद, मेरा मतलब जिंदगी का खत्म हो रहा है। अगर मैं 10 साल तक ऐसी करती तो क्या होगा मेरा, ऐसा फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सुबह 9 से 10 तक जाना है। तो अब इसी को चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करते हैं कि आपको जॉब मिलती है जिसमें आपको ये बोला जाता है कि किंशुक आप जो पढ़ रहे हो ना, पढ़ाई के साथ साथ आपने एक एनजीओ में आपको हम 2 घंटे के लिए काम दे रहे हैं, जिसमें आपको पेमेंट नहीं मिलेगी बिकॉज इट्स एनजीओ, लेकिन आपने ना वो जो बच्चे आते हैं वहां पर उनको पढ़ाना है। जो भी आपको आता है, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश पढ़ा दीजिए, मैथमेटिक्स 2 घंटे आपको या 4 घंटे हफ्ते में दे रहे हैं, जिनको आपको पढ़ाना है, क्योंकि उन बच्चों का फ्यूचर बनेगा उससे। क्योंकि वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमने उनको फ्री एजुकेशन दी, तो वी कांट पे यू। नाउ व्हाट किंशुक? आई थिंक अब जैसे अब ज्यादा जागरूकता आ रही है इस बारे में, तो many people volunteer. In fact, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे तो I will also volunteer. But again, it depends कि किसी की लाइफ का गोल क्या है. If someone does want to do it or doesn't want to do it. एब्सोल्युटली। बट अगर आप मतलब की बात करें तो यहाँ पर एक मतलब क्या है, कोई सोच सकता है अरे बच्चों को पढ़ाना है यार, मेरे पास टाइम ही नहीं है, बच्चों को पढ़ा के मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूं बहुत है, या मैं अपने 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 लोगों के साथ काम कर लूं वही बहुत है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जो लोग मतलब ढूंढ रहे हैं अपनी 2 घंटे का, वो पता क्या ढूंढेंगे, मेरी वजह से अगर एक बच्चे की लाइफ में फर्क पड़ गया एंड ही कैन बिकम समथिंग व्हाट ही वांट्स टू डू, दैट्स इज गिविंग मी सम काइंड ऑफ मीनिंग, कि मैं 2 घंटे वेस्ट नहीं कर रहा हूं वहां पर। जैसे अगर घर वाले कहें अच्छा जी ऐसा है, तुम 2 घंटे बर्बाद कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल, तुम खुद ही पढ़ लो ना, बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है। एक दूसरा, अगर पेरेंट्स ये बोले इससे अच्छा काम नहीं हो सकता कि तुम कम से कम सोसाइटी को कुछ वापस तो कर रही हो जो तुमने गेन किया, और उन बच्चों को मौका नहीं मिलता है, और तुम देखो कितना बड़ा काम कर रही हो ना, उसी चीज को मतलब बन गए आप तुम्हारी जिंदगी। Yes, sir. अब वो गड्ढा खोदना और भरना और बच्चों को पढ़ाने में फर्क हो गया, जबकि वहां पर पेमेंट मिल रही है आपको, और यहां पर आपको कोई पेमेंट भी नहीं मिल रही है, लेकिन मतलब मिल रहा है उसके अंदर। सो जस्ट एन एग्जांपल, एनीबॉडी एल्स वांट टू डिस्कस मतलब लाइफ का? सर मतलब लाइफ का ऐसे ही होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई काम होना चाहिए जिसमें इंसान को सेटिस्फेक्शन मिल सके। उसका ठीक है, मॉनेटरी एस्पेक्ट अलग होते हैं, लेकिन उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ही शुड गो टू बेड विद अ हैप्पी माइंड कि ठीक है, आज मैंने कोई अच्छा काम किया है, मेरे मतलब का काम किया है, मेरी पसंद का काम किया है, दूसरा भी बेनिफिट हो गया, मैं भी खुश हो गया, ठीक है, मुझे भी बेनिफिट हो गया। ये एक यस, जनरल सेटिस्फेक्शन हम इस चीज को बोल सकते हैं, इससे लाइफ अच्छे से चल सकती है। सो दैट्स व्हाट
Shweta, you are very clear. Anybody else? कुछ भी, and जरूरी नहीं है कुछ भी, anything you want to ask, tell. मतलब लाइफ का. Yes, काम. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में, मेरी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के कंट्रीब्यूशन किया है। तो ऐसी जगह पे कंट्रीब्यूशन किया है जहां पर आप होपलेस होते हो या कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो वो मेरी लाइफ की चेंजिंग टाइम था, यानी पूरी तरह से मैं खत्म हो जाती है। तो आपको भी कंट्रीब्यूशन जब आप किसी की लाइफ में करते हो, वो आपको लाइफ को मीनिंग देता है। Yes. उसके पीछे चाहे पैसे हो या नहीं हो, लेकिन जब भी हम कोई एक छोटी सी बात से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाती है। मैं इससे बहुत सारे लोग हो जाती है, मैं भी जानती हूँ कि सुसाइडल एकदम उस जगह पे जाकर भी आप किसी की एक लाइन सुनकर अपना फैसला बदल लेते हैं। Yes. तो Yes. बहुत सारे, हम पूरे दिन भर में बहुत सारे लोगों से ऐसे कनेक्ट होते हैं जहां पर हम मॉनिटरी गेन या मनी के लिए नहीं होते, हम इनडायरेक्टली डायरेक्ट वे में हमारा कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। अगर हम ऐसे बोले कि इस अर्थ पर हम हैं, मैं जो सांस ले रही हूँ, आप अगर मेरे पास बैठे हैं तो आप भी उस सांस को शेयर कर रहे होते हैं। इस अर्थ को हम शेयर कर रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर को शेयर कर रहे हैं। यानी हम बोले कि हमको क्या फर्क पड़ता है पॉल्यूशन से, या हमको क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर अर्थ के अंदर कोई भी माइंस खोद दे या कुछ भी कर ले। लेकिन हर एक चीज से कोरोना ने सिखाया भी है कि हम लोग अच्छाई में और बुराई में दोनों में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करते हैं। और शायद ह्यूमैनिटी है एज ए ह्यूमन, शायद हमारी लाइफ को वही मीनिंग देता है, चाहे वो Absolutely कोई right. भी काम हो। Right, Kamra. That's very precise. कोई भी ऐसा काम जो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, राइट? हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर उससे हम कुछ ऐसी चीज जो आपकी लाइफ को मतलब देती है, वो करती क्या है एक्चुअली, उसकी बात कर लेते हैं। सो जैसे भी श्वेता ने शुरू किया था, तो ये श्वेता ने स्टार्ट किया था ये सारा चीज। तो क्या होता है, अभी आपको रिसर्च से एक और चीज मिलने वाली है कि अब इस टाइम पर हमें लगता है लोग बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं, काम से बहुत परेशान है, बट एक और चीज है जो परेशान कर रही है लोगों को, और वो भी उन लोगों को जिनके पास सब कुछ है जो आपके पास नहीं है या हमारे पास नहीं। वो है बोर्डम। बोर हो गए हैं वो लाइफ से। अब बोर दो तरह से हो सकते हो आप। एक, आप बहुत काम कर रहे हो फिर भी बोर हो गए, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये काम हो क्यों रहा है। हैमस्टर बोर हो गया बेचारा, चल चल के बोर हो गया। कोलू का बैल बोलते हैं वैसे हमारी उस लैंग्वेज में, ये इंग्लिश का हैमस्टर है, वैसे हमारे तो कोलू का बैल बोलते हैं जो घूमता है ऐसा, राइट? वो कोलू का बैल, वो बेचारा चल चल के परेशान हो चुका है, बोर हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। वो ही सो बोर्ड बट ही इज वर्किंग, राइट? तो लोग बोरियत, जिनके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, वो लोग बोर हो रहे हैं कि मुझे करना क्या है। जिनके पास वो नहीं है, वो लाइफ में वो अचीव करने के लिए जो काम करते हैं उसमें कई बार बोर हो जाते हैं कि यार लगातार मैं कर रहा हूँ, बट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दैट नो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन जिसे आप बोलते हो, वैसी नहीं मिलते, या मीनिंग लाइफ में, मेरी लाइफ का मतलब क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम अपनी अपनी लाइफ में देखते हैं। एक मदर का, एक एज ए मदर, आपके पास बच्चे हैं, आपको उनको संभालना है, उनको बड़ा करना है, यही लाइफ का एक मकसद बन जाता है उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो हैं छोटे। बट ये मकसद कई बार आपको तंग ये कर सकता है कि क्या यही मेरी जिंदगी है? क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो आपसे डिटैच होते जाते हैं, और आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए होती उन्हें। तो आपको लगता है यार देखो, हमने पूरी जिंदगी लगा दी इसमें और अभी आप डिटैच हो रहे हैं, तो आपका जो पूरा एक वो था ना सिस्टम, वो खराब हो जाता है। तो कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ को मतलब दे, और मतलब का मतलब है जब सुबह आप आंखें खोलें तो आपको ऐसा लगे यस, एक दिन और मिला मुझे अपने मकसद को पूरा करने में, अपने मतलब के लिए। Yashwita, you are saying something? Okay. So, ये जो सुबह आंखें खोलते हैं और हमें लगता है ना यस, एक दिन और मिला मुझे वो करने के लिए जो मुझे करना है, जो मैं करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, वो ये चीज जो है वो मकसद का काम करती है। लेकिन वो सीधे आप उस पर नहीं पहुंच पाते कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है। तो 3 वर्ड्स में आपसे शेयर करता हूँ, और तीनों का डिफरेंस भी आप शेयर करेंगे। डिस्कशन पॉइंट है पैशन, पर्पस, मीनिंग। इफ यू गो, हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
पैशन, पर्पस, मीनिंग, ये तीन चीजों को अगर हम डिकोड करें या इसको थोड़ा सा खोजें तो हम क्या समझते हैं? पैशन, पर्पस, मीनिंग। एक आम इंसान के लिए वर्ड्स के क्या मायने, हमारे लिए इस वर्ड्स के काम क्या मायने, और इनका आपस में इंटररिलेशन क्या है कनेक्शन इसका। और क्या ये जो तीन वर्ड्स मैंने आपसे शेयर किए, क्या ये इतने ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं कि हम लोगों में से ज्यादातर लोगों के पैशन नहीं है, ज्यादातर लोगों का पर्पस नहीं है, ज्यादातर लोगों का लाइफ मीनिंग नहीं, जबकि ये इतने ज्यादा सुने जाने वाले वर्ड, राइट? सो पैशन, पर्पस और मीनिंग, इन तीन चीजों पर जब मैं काफी टाइम से काम कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत सारी चीजों का इलाज है। ये वो इलाज है जो जिसको बोलते हैं राम बाण इलाज। और फिर मैंने सुना जो एक्सपर्ट्स थे वो क्या कहते हैं, एक्चुअली में जो मीनिंग है, जिसको हम पर्पस भी बोल सकते हैं, लेकिन हम मीनिंग का नाम लेते हैं बिकॉज पर्पस और मीनिंग के अंदर स्लाइटली डिफरेंट होता है। लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा हो सकता है और मीनिंग, उस पर्पस में से मीनिंग आना चाहिए। जो मीनिंग है वो आपकी लाइफ को क्या दे सकता है, और क्या जो तीन सबसे बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में, तीन सबसे बड़े नेगेटिव इफेक्ट, अग्रेशन, एडिक्शन, और थर्ड वन इज डिप्रेशन। एडिक्शन, अग्रेशन, डिप्रेशन, ये तीन सबसे बड़े नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं जो इंसान की लाइफ को डिरेल कर सकते। इन तीनों का बेस, अग्रेशन, डिप्रेशन एंड एडिक्शन, तीनों का बेस कहीं ना कहीं लाइफ के मीनिंग से जुड़ा हुआ है। When you see aggressive people, actually they don't have meaning in whatever they are doing, and that's why they are so aggressive that they want to command things, they want to control things, because they don't know where they are going, and their frustration में वो उस चीज को करते हैं। डिप्रेशन कैसे आ रहा है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, you are in blank and you are just sitting down there and you know, so ये जो सब बातें हैं ना, इसके लिए मैं रेफरेंस आपको दे सकता हूँ। इफ यू हैव, अगर आपको कभी मौका मिले, कभी, ये नहीं चाहूंगा मैं अभी, कभी भी मौका मिले, तो एक बुक है जिसका नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। यू कैन राइट इट डाउन एंड जस्ट लेट मी शो यू दिस, गिव मी अ सेकंड। कभी भी आपको मौका मिले, मैं अभी नहीं बहुत चाहूंगा बिकॉज ये बुक समझने में भी टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन ये समझ में आती है उस दिन बहुत सारे ढक्कन खुल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, छोटी सी बुक है, इट्स कॉल्ड मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल। राइट, 12 साल पहले ये बुक मेरे पास आई थी, उसके बाद दोबारा 4-5 बार ये बुक मेरे पास सामने से निकल चुकी है, लेकिन अब ये बुक आई है ना, बहुत जोरों से आई है बिकॉज आई वाज सर्चिंग ऑन दैट। नाउ एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूंगा ज्यादा आपसे। दिस इज समथिंग कॉल्ड, जो विक्टर फ्रैंकल है, ये विक्टर फ्रैंकल इज अ जर्मन, सॉरी ज्यूश है, और ये इनको नाजी के जो कंसंट्रेशन कैंप होते थे, जो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप होते थे, जहां पर गैस चैम्बर्स होते थे, अगर आप सबको मालूम है, बट इट्स वेरी वेरी यू नो डिस्टिंक्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस थिंग। वहां से ये निकले सर्वाइवर हैं, कंसंट्रेशन कैंप के सर्वाइवर हैं, जहां पर इंसान के ऊपर सबसे बड़ी जो उनको एक कहते हैं ना एक त्रासदी होती है वो भुगतनी पड़ी थी। वहां से when they come out from there, and he is a doctor or physician also, he is a doctor, psychologist also, so उन्होंने जो लिखा, what he has written in that book is कि एक इंसान की जर्नी, किसी की भी वो जर्नी जो है ना, वो उसके मीनिंग की जर्नी। सो ये क्यों बोल रहे हैं, उसको क्यों बोलते हैं थर्ड स्कूल है, ये थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में क्यों बोलते हैं? पहले बोला जाता था कि जो भी हम करते हैं हमारा मकसद लाइफ का है आनंद, यानी प्लेजर। वी ऑल नीड प्लेजर, लाइक हम हैप्पीनेस बोलते हैं या प्लेजर बोलते हैं।
तो ये जो फिलोसफी थी फ्राइड जो है उनकी फिलोसफी थी, वी ऑल नीड वांट प्लेजर, वो चाहे किसी भी तरीके का प्लेजर हो, वी ऑल नीड प्लेजर। तो हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, प्लेजर के लिए काम करते हैं, एवरीबॉडी वांट्स, दैट्स मोटिवेशन नंबर 1 ऑफ एवरी वन ऑफ अस। द सेकंड फिलोसफी कम फ्रॉम एडलर, जो ये कहते हैं वी ऑल वर्क फॉर पावर और पोजीशन और गेनिंग कंट्रोल और समथिंग टू प्रूव अवर सेल्फ, हमारी पावर प्रूव करने के लिए, सेकंड फिलोसफी। बट द थर्ड केम विद दिस विक्टर फ्रैंकलिन, दैट इससे भी बड़ी चीज है मीनिंग का होना, कि वी ऑल आर सर्चिंग फॉर मीनिंग इन आवर लाइफ, और जब तक वो नहीं मिलता तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती, हमें अच्छा नहीं लगता। और इवन मीनिंग के ऊपर तो यहां तक बात आ गई, वो इसलिए यहां पर आई थी कि प्लेजर और पावर नहीं है, कि जब आप सफर करते हो, सफर समझते हो सफर, जब आप दुखी होते हो या कोई काम ऐसा मुश्किल वाला कर रहे हो, आपके पास अगर मीनिंग है उस सफरिंग के अंदर तो आप उसको भी झेल जाते हो, राइट? इसको समझना, मीनिंग है आपके पास, आप उसको भी झेल जाते हो। जैसे अगर आपको एक सुई चुभ जाए और खून निकल जाए तो आपको कितना दर्द होता है, राइट? आपको लगता है ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन वहीं पर अगर आपको इंजेक्शन लगाया जाए विद मेडिसिन तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होती, बिकॉज आपको पता है ये किस लिए लगाया जा रहा है या उसके पीछे का मकसद क्या है, मैं क्यों उसको यूज कर रही हूं। उसी तरह से जब हम कोई भी ऐसी सफरिंग जो हमारी लाइफ में होती है, चाहे वो हमारे इमोशनल हो, चाहे हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें हो, चाहे बच्चों के लिए हम कुछ कभी हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी के लिए, तो वो सेक्रीफाइस के पीछे कोई ना कोई मीनिंग होता है, तभी हम उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं। हमने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी उसके लिए, उसके पीछे एक मीनिंग था, तो हम उसको भी झेल जाते हैं। सो नीत्शे करके एक बंदे हैं जो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा था कि वी कैन बियर एनी हाउ इफ वी नो अवर वाई, यानी अगर हमें अपना वाई यानी अपनी मीनिंग पता हो लाइफ में, तो हम कैसी भी सफरिंग को झेल सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज कितनों को समझ में आएगा, कितनों को नहीं आएगा, आई डोंट नो, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज वी ऑल आर फेसिंग इन वन टू वन इन रियल लाइफ ऑल्सो। अगर सपोज करो आपकी वो जो सफरिंग हो रही है, सफरिंग का मतलब है जैसे आपको लग रहा है कि मुझे, एग्जाम्पल देते हैं, एक ओलंपिक एथलीट, कामना ध्यान देना, ओलंपिक एथलीट सुबह उठता है 4 बजे, खाने में वो नहीं खाता है जो उसको खाना पसंद है, 4 साल की तपस्या है ओलंपिक में जाने की, राइट? 4 साल, और 4 साल वो उस कोच की निगरानी में रहता है, वो कुछ नहीं करता है, ना खाता है वैसा, ना कुछ करता है, सुबह 4 बजे उठ के डेली प्रैक्टिस करता है, बहुत सारी चीजें, टीवी देखता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। ये सफरिंग है उसकी, एक्चुअली लाइफ की सफरिंग है, बिकॉज वो लाइफ जी नहीं रहा है उस टाइम पे, उसको लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे एक मकसद है, ओलंपिक में जाके देश के लिए मेडल लाना, ये एक उसका मकसद है। और उसकी मीनिंग क्या, उसकी लाइफ में मीनिंग क्या देता है कि उसके जैसा बंदा भी ये कर सकता है, ये करने से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, उसकी लाइफ में मीनिंग क्रिएट होता है। तो ये जो सफरिंग है 4 साल की, ये इसको बड़ी खुशी खुशी झेल जाता है, राइट? यही आप उल्टा कर लो, अब उसको नहीं पता है मैं सुबह 4 बजे क्यों उठ रहा हूं, पापा बोलते हैं इसलिए उठ रहा हूं, और पापा बड़े सख्त है, नहीं उठोगे तो उठा देंगे। अब ये जो दूसरी टाइप की सफरिंग है, ये क्या झेल पाएगा वो? इसमें क्या उसका मकसद है, मीनिंग है क्या? नहीं। उसको पता क्या लगेगा, डेली मैं कैसे जी रहा हूं, व्हाई आई एम लिविंग, ये है, ब्लेमिंग मोड में आ जाएगा, क्रिटिसिज्म मोड में आ जाएगा, बीमारियां पाल लेगा, गुस्सा करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो झेल नहीं पाएगा उसको, बिकॉज उसके पीछे कोई भी मकसद अटैच नहीं है, उसमें पीछे कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन इसी को जब हमने जोड़ दिया किसी चीज से और मीनिंग लाइफ में ले आए, तो वो कुछ भी करने को तैयार है उसके लिए। सो इसको ना, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। हम सबकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा टाइम निकालकर हम ये सोच पाए कि आखिर मेरी लाइफ में क्या चीज मीनिंग देगी, या क्या मैं आज किसी, मेरी लाइफ का कोई मकसद है, कोई मीनिंग है मेरी लाइफ का आज की डेट, वट एवर आई एम डूइंग, कुछ ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ,
जो मेरी लाइफ को मीनिंग देता है। इफ वी ऑल, चाहे वो हम स्टडी कर रहे हो, चाहे हम हाउसवाइफ हो, चाहे हम कुछ नहीं कर रहे हो, चाहे हम एज में ज्यादा हो कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू थिंक अबाउट दैट, व्हाट गिव्स माय लाइफ अ मीनिंग, तब आपका पूरा ओरिएंटेशन ही बदल जाता है। क्योंकि आप क्या देख रहे हो, अब आपको छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती, आपको छोटे प्लेजर्स मैटर नहीं करते, आपको लॉन्ग टर्म दिख रहा है, आपको मतलब दिखाई दे रहा है, मकसद दिखाई दे रहा है। अगर आपने ये विद्यार्थी, जो मिस्टर विद्यार्थी है, नाम याद नहीं आ रहा, सत्यार्थ विद्यार्थी और समथिंग, जिनको नोबेल प्राइज मिला था अभी चाइल्ड कैलाश ट्रैफिकिंग की, सत्यार्थी, हाँ। कैलाश सत्यार्थी, राइट, उनको नोबेल प्राइज मिला था, जो बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। बच्चे कौन से? जिनको छोटी उम्र में धकेल देते हैं मजदूरी करने के लिए, बाल श्रमिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो छोटे बच्चे जिसे बाल श्रमिक बोलते हो आप, वो उनको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा डेडिकेट कर दिया। कभी भी आप कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ सुनना चाहें, उनकी टेड टॉक सुन लें या उनको देख लें, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर उनके दिमाग में क्या आया था जब वो ऐसा करने चले थे। वहां से उनकी लाइफ, और बहुत दिक्कतें होती हैं इसमें, बिकॉज उनको काफी लोगों ने धमकाया भी, पुलिस भी पकड़ के ले जाती है, गुंडे भी उनको तंग करते हैं, लेकिन वो अपने इस चीज से उन्हें क्या मिलता है, लाइफ में मकसद मिलता है उनको, कि मैं जिस बच्चे को बचा रहा हूँ उसको एक जिंदगी वापस कर रहा हूँ। दैट इज माई लाइफ मीनिंग, दैट गिव्स माई लाइफ मीनिंग। उनको इससे कोई मतलब नहीं, उनको प्राइज मिला है या वो फेमस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, प्राइज तो भी मिला, लेकिन ही इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दिस। नॉट ओनली ही, हिज वाइफ इज ऑल्सो इंक्लूडेड। वो पूरी फैमिली उसके ऊपर काम करती है। उनका एक ही मकसद है, बच्चों को बचाना। कोई 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 फैंसी चीज नहीं है और कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ का मीनिंग देती है ये चीज। उसी तरह से स्टेटमेंट ना इतना खूबसूरत है कैलाश सत्यार्थी जी का, जब हाँ। उनको नोबेल प्राइज मिला था, जब एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं पता, लेकिन उनने कुछ ऐसा कहा था कि जिस भी बच्चे को मैं बचाता हूँ, हर एक लाइफ को जब मैं बचाता हूँ, तो मैं अपने आप को सेट फ्री करता हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता था। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। यस, अपने आप को ही इज सेटिंग फ्री विद एवरी लाइफ ही इज struggling, and he is setting free any child, every single child, he is setting himself free. That is a Yes. wonderful thought. एंड दैट्स हिज। सो अगर उनसे पूछा जाए कि ये क्या चीज आपको रात में सोने में हेल्प करती है, जिनको इंसोम्निया है उनके लिए बहुत बड़ी खबर। अगर आपकी लाइफ में मकसद है, मतलब है, तो नींद अच्छी आएगी। नींद ना आने का रीजन भी ये होता है कि मेरी लाइफ का मतलब नहीं है। यू आर रियली एक्चुअली डीप डाउन इनसाइड, यू आर फाइंडिंग द मीनिंग, इसलिए वो आप जगे रहते, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम्पल, उसी तरह से जो ग्रामीण बैंक के जो फाउंडर हैं, ग्रामीण बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है जो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक है, जो छोटे छोटे लोन देता है, उनकी जब शुरुआत हुई थी, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, उनकी शुरुआत भी ऐसे हुई थी। ही स्टार्टेड टू स्टार्ट गिविंग पीपल फ्रॉम देयर पॉकेट स्मॉल लोन, बिकॉज उनको किसी को 1000 रुपए कोई बैंक देने को तैयार नहीं था, और वो 1000 रुपए में अपनी टोकरियां बनाते थे वो बंदे। अगर उनको 1000 रुपए मिल जाए तो वो उसको 1200 में बेच के 200 रुपए प्रॉफिट ले सकते थे। वो छोटे छोटे जो कहते हैं ना माइक्रो लोन्स, उस समय नहीं होते थे, एंड ही स्टार्टेड टू गिव दैट माइक्रो लोन फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, बिकॉज गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। एंड व्हेन he has given lot of people this thing, he went to government again, and government ने फिर भी मना कर दिया कि अब हम बैंक नहीं बना सकते। तो उन्होंने बहुत जद्दोजहद करके आफ्टर ईयर्स बैंक, कोऑपरेटिव बैंक खोलना शुरू किया था। सो वो उनको क्या देता था कि मैं इस बंदे की जब मदद करूंगा तो उसमें मेरे को क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, आई हैव हेल्प्ड समबडी टू हैव हिज लाइफ और हर लाइफ बैक। एक उससे मुझे क्या मिलता है, लोग कहेंगे उससे तुम्हें क्या मिलता है, उससे मुझे मेरी लाइफ का मकसद मिलता है कि कल मैं अगर जाके किसी को करूं तो मुझे उसको हेल्प करनी है। कुछ भी ऐसा जो आपको जिंदगी में आगे देखने, यानी फ्यूचर में देखने को हेल्प कर सके। सो अब पैशन, पर्पस और मतलब मीनिंग की बात करते हैं। पैशन, इंटरेस्ट और हॉबी से बहुत बड़ी चीज है, राइट। हॉबीज होती है किसी की, मेरा पढ़ना हॉबी है, मेरी गार्डनिंग हॉबी है, ये मेरा ये हॉबी है। ये इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट है मूवीज देखना, मेरा इंटरेस्ट है घूमना। इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट है
मौका मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट पैशन जब मैं बात करता हूं आपसे, तो पैशन का हिंदी वर्ड क्या है बाय द वे? जुनून। जुनून। अब सोचिए, जुनून सोचते ही आपके आपके ब्लड में एक वो आया था, जुनून। जुनून को ना आप ठंडे में नहीं ले सकते। यू कैन नॉट हैव जुनून एंड सिट लाइक दिस। किसी चीज का जुनून है क्या, किसी भी चीज, और अगर वो जुनून है तो कहीं वो दबा हुआ तो नहीं, या वो जुनून है तो खाली है ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं जुनून के लिए करेज चाहिए। जुनून तो है लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पा रहा उसको, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे फेल्योर से डर लगता है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे को लोग कैसे लेंगे या क्या तकलीफ आएंगी, मैं नहीं झेल सकता, तो करेज डेवलप नहीं होती है, इसलिए वो पैशन पैशन इंटरेस्ट बन के रह जाता है। लेकिन अगर मैं आप सबसे पूछूं, जो मैं खुद से पूछता था, क्या है मेरी लाइफ का पैशन आज की दिन, है भी कि नहीं? अगर ज्यादातर केसेस में वो नहीं आता, बिकॉज हम पहचान नहीं पाते, अगर वो नहीं है तो पहली ही सीढ़ी आपको समझ में आ गई, इफ आई एम नॉट पैशनेट अबाउट एनीथिंग, समथिंग इज मिसिंग। क्योंकि ये पहली सीढ़ी है, और वो पैशन ना किसी भी एज में आ सकता है, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में। वो पैशन कभी भी जनरेट हो सकता है, लेकिन जिस दिन वो जनरेट होता है उसी दिन के बाद आप काउंट करते हो, आई एम लिविंग, राइट? सो पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हैं, एम आई पैशनेट अबाउट समथिंग? एंड दिस, बाय द वे, सब टेम्परामेंट के बारे में समझते हैं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू टेम्परामेंट की कुछ टेम्परामेंट बहुत अग्रेसिव होते हैं, कुछ बहुत सबमिसिव होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। बिकॉज an introvert can have the passion as well as the extrovert, कोई संबंध नहीं, राइट? लेकिन आपका वो जुनून है क्या किसी चीज के लिए? जुनून। नाउ सो मैं आपको एक नटशेल में बता रहा हूं। अब जुनून आया तो जुनून किसी भी चीज के लिए आ सकता है, गलत या ठीक, इट्स सब्जेक्टिव। सो इट्स ए इंटरेस्टिंग थिंग कि जुनून का मतलब हमेशा पॉजिटिव जुनून नहीं होता है। जुनून कैन बी ऑफ एनीथिंग। टेररिस्ट और आल्सो जुनून होता है ना उनके अंदर। जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग लोगों को मारते हैं, उनके अंदर भी जुनून है। इतना जुनून होता है कि दे कैन डाई फॉर दैट, मर जाते हैं। तो जुनून का संबंध नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव का, लेकिन यहां पर बन जाता है सेकंड कॉज कि वो जुनून आपके पर्पस में कैसे तब्दील होता है। पर्पस यानी लाइफ का मकसद क्या है, मकसद क्या है उसका, और वो मकसद। नाउ पैशन कैन बी इंडिविजुअलाइज्ड, यानी इंडिविजुअल से पैशन आ सकता है, लेकिन मकसद में हमेशा दूसरे लोग शामिल होते हैं। पर्पस के हमेशा दूसरे लोग शामिल होंगे। अब सोचिए, आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग, फॉर एग्जांपल ओके, हमारे जो ओलंपियंस हैं इस बार जो मेडल जीत के लेके आए, नो, वो पैशनेट थे तभी मेडल जीत के लेके आए, बिना पैशन के तो मेडल भी नहीं आते। तो अगर नीरज चोपड़ा की बात करें जिन्होंने जैवलिन थ्रो फेंका था, ही सो पैशनेट अबाउट हिज थिंग कि ही बॉट दैट टू अस। लेकिन क्या जैवलिन फेंकना उसकी लाइफ का पर्पस है? सोच के देखिए। इट कैन बी अ पैशन टू थ्रो जैवलिन क्या एथलेटिक्स में, लेकिन क्या वो पर्पस है उसकी लाइफ का? हो सकता है कि मेरी लाइफ का तो मकसद ही जैवलिन फेंको, नहीं हो सकता ना। अब सोचिए नीरज चोपड़ा क्या सोचते होंगे दिल में कि जो मुझे यहां से सम्मान मिला, जो पैसा मिला, मैं एक एकेडमी खोलूं और उस एकेडमी में उन बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा जिनको एथलेटिक्स की ट्रेनिंग नहीं मिलती, एंड आई विल डू इट फॉर फ्री और फॉर वेरी लेस चार्जेस, और आई विल हैव माय स्कूल जहां पर सब लोग आ सकते हैं, जो पेमेंट नहीं कर सकते उनको मैं हेल्प करूंगा, लेकिन बड़े लोग भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लेकिन मेरा मकसद क्या है?
नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करना, एथलेटिक्स में कुछ लेके आना देश के लिए, ये लगता है कुछ पर्पस सा। Yes. अब जब वो सुबह उठते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अब मेरे पास पैसा है, शोहरत है, ओहदा है, मेरी बात सुनी जाती है, तो अब मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं एम्पावर करना चाहता हूं बच्चों को एथलेटिक्स में आने के लिए। एंड दैट्स व्हाई ये जो एकेडमी है ना, दिस इज माय, थ्रू दिस आई एम सॉल्विंग अ पर्पस। इसके थ्रू मैं एक पर्पस सॉल्व कर रहा हूं, वो है हेल्प करना उन बच्चों को आगे बढ़ने, और साथ में देश के लिए कुछ करना, बिकॉज वो कर रहे हैं। अब देखिए बदल गया, पैशन था जेवलिन, पर्पस क्या हो गया, टू हेल्प दोज किड्स गो टू दैट लेवल, और उनको वो फैसिलिटी अवेलेबल कराना जो उनको नहीं मिलती है। इसी बीच में मीनिंग कहां से आया, अब रात को नींद कैसे आती है उनको नींद आती है अगर एक भी बच्चे को मैं ट्रेन कर पाया, एक भी बच्चे को मैं ट्रेन कर पाया और वो लेके आ पाता है जो सोच भी नहीं सकता था, मेरी लाइफ में मीनिंग आ गया। अब अगर आज मैं चला भी जाऊं, if I go today of this life, I have no regrets. So that's what the meaning is. You're getting the point? थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, लेकिन पैशन के थ्रू पर्पस की तरफ पहुंच रहे हो, और पर्पस के अंदर आपको मिल रहा है मीनिंग। और ये जो लाइफ होती है ना, ये बहुत ही डिफरेंट लाइफ है, और इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई से इसका संबंध नहीं है। इसके लिए आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, सॉरी, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से इसका संबंध नहीं है, आपके फिजिकल बैकग्राउंड से संबंध नहीं है, औरत है, आदमी है, लड़का है, लड़की है, पतला है, मोटा है, इसका संबंध नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्टीफन हॉकिंग्स नहीं होते। स्टीफन हॉकिंग्स को जानते हो आप, जो कुर्सी पे है पिछले 45 years, but he is one of the greatest scientists, right? So फिजिकल एबिलिटी भी, फिजिकल डिसेबिलिटी भी सामने नहीं आती है जब आपका मीनिंग क्रिएट हो जाता लाइफ। So how can I transfer that? And when you are living your passion and with meaning, आपके आसपास का माहौल अपने आप बदलता रहता है। Now understand this. अपने आप चेंज होता है आपके आसपास का माहौल। कैसे? क्योंकि आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो पैशनेट और मीनिंग है जिनकी लाइफ। बाकी लोग ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से अलग होते जाते हैं। यू आर लिविंग विद देम, बट एक्चुअली मेंटली यू आर नॉट कनेक्टेड विद देम। सोसाइटी में रहते हो, और उनकी बातें भी जो पहले चुभती थी आपको नहीं चुभ रही हैं, बिकॉज आपके शील्ड बना हुआ चारों तरफ। किसका शील्ड है? मीनिंग का, पैशन का, पर्पस का। एंड अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, इवन आपके पेरेंट्स हैं, आपसे इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू आर लिविंग योर लाइफ विद पैशन, मीनिंग एंड पर्पस। तो सोचिए, एक चीज ने क्या कर दिया, आपने बाहर कुछ भी चेंज नहीं किया, किसी को बदला नहीं, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर पैशन, पर्पस और मीनिंग को ऐड कर दिया, और आप देख रहे हो पूरी दुनिया बदल रही है आपके चारों तरफ। एंड दिस इज, बाय द वे, is not taught in any school or college or even homes, because taught का तो तब मतलब है बिकॉज ये सिखाया जा नहीं सकता, ये आप सीख नहीं सकते इसको तो आप अंदर से क्रिएट करते हो, माहौल चाहिए उसके लिए। आप वो माहौल शुरुआत कहां से होगी? आपसे, और आपको नहीं पता है कौन इंस्पायर होगा आपसे। नाउ इन माय केस, सी दैट इफ आई एम टॉकिंग टू यू, पूजा है, कामना है, किंशुक आप है, श्वेता, मेघा, रश्मि, जिनको मैं पहले कभी नहीं जानता था, आप भी मुझे नहीं जानते, राइट? Today we are together. Some people are for 7 years, for 6 years, for 6 months, 1 year, and maybe next 10 years. We don't know. So, क्या माहौल में चेंज किया? I am passionate. I have a purpose.
I am finding a meaning in my life, so I am attracting people like you who are ready to work on them. इस जगह पर ना, जिस जगह हम काम कर रहे हैं, आसान नहीं है यहाँ पर काम करना, क्योंकि सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने ऊपर काम करना। सबसे आसान काम क्या है? दूसरों के साथ काम करना। ये ऐसा, वो वैसा, उसको चेंज होना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, ये ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे। गवर्नमेंट की गलतियां ढूंढते रहना, उनमें से गलतियां निकालते रहना, सब इजी है। मुश्किल क्या है? व्हाट आई एम डूइंग, उसमें देखना मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, अपनी लाइफ के अंदर मीनिंग लेके आना, इंट्रोस्पेक्ट करना, कंटेम्पलेट करना, अपने आप से पूछना आर यू गोइंग द राइट वे, अपने आप से बात करना, खुद के अंदर वो बदलाव लाना जो बदलाव चाहिए आपको, खुद से क्वेश्चन करना, एम आई हैव मीनिंग। सबसे मुश्किल काम ये है, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन लिविंग इनसाइड आउट। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। सो जब पर्सनल कोचिंग, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ लोग जो पर्सनल कोचिंग में, पर्सनल कोचिंग में इसीलिए ये बात सबसे इंपॉर्टेंट उठाई जाती है कि वी नीड टू हैव मीनिंग, और वो मीनिंग प्रोसेस के थ्रू आता है, धीरे धीरे आता है, क्योंकि हम लोग सब भरे होते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, और कई लोग इसके साक्षी भी होंगे, जिन लोगों की लाइफ में वो स्पार्क आ गया, जिसे बोलते हैं पैशन और मीनिंग का, उनकी लाइफ और उनकी लाइफ जिनमें ये स्पार्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पैसा, जहां पर शोहरत, जहां पर नाम किसी काम का नहीं। आई टोल्ड यू, जिनके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, वो अगर इसकी वजह से आ रहा है, इस मीनिंग की वजह से आ रहा है, तो उनके लिए फिर भी मैटर नहीं करता है। और जिनको इसकी वजह से नहीं आ रहा, वो फिर भी मैटर नहीं करता, बिकॉज उससे भी उन्हें मीनिंग नहीं मिल रहा है लाइफ। सो एक्चुअली वो इरिस्पेक्टिव है। आपको पैसा किसे चाहिए? बिकॉज आपको सर्वाइव करना है। आपको पैसा चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको नाम चाहिए, सर्वाइवल से ऊपर उठ के बात करते हैं। लेकिन अगर आप मैस्लोज पिरामिड में देखें, तो सबसे नीचे की जो पार्ट है, वो क्या है? आपको खाना, कपड़ा, मकान चाहिए। ये सबसे नीचे का पार्ट है, राइट? जब खाना, कपड़ा, मकान मिलता है तो आप ऊपर की तरफ जाते हो। आपको अपने आप नॉलेज चाहिए, आपको थोड़ा सा और नाम चाहिए, ये चाहिए। लेकिन सबसे ऊपर का पिरामिड क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जहां पर आप खुद को पूछते हो, सो इफ आई डाइड टुडे, क्या मेरे रिग्रेट्स होंगे? ये क्वेश्चन होता है अपने आप से। और वही जो रिग्रेट्स होंगे ना, वही है आपकी लाइफ के अंदर गैप। क्योंकि इफ आई डाइड टुडे, मैंने ये नहीं किया, ये रह गया, अगर ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, ये सब कुछ मेरे दिमाग में आता है। लेकिन अगर वो इंसान डेली अपनी लाइफ को ऐसे जी रहा है कि यस, आई एम लिविंग एज इट इज माई लास्ट डे एंड टुमारो आई विल लिव इट एज माई लास्ट डे, तो वो क्या कर रहा है? हर एक दिन अपनी लाइफ के अंदर मकसद और मीनिंग लेके आ रहा है, सो दैट व्हेन ही स्लीप्स वेरी वेरी साउंड स्लीप। इंसोम्निया खत्म हो जाता है उसका। And that I cannot transfer through my talks and all, but I have seen this, practiced this, and living this as on today. और आप सबसे जो मेरा हार्टली जो शेयरिंग है, वो ये, हम सब जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ के अंदर का पैशन, पर्पस और मीनिंग ढूंढने की शुरुआत कर दे। चाहे किसी भी जगह पे हो आप, किसी भी पोजीशन में हो आप, किसी भी कंडीशन में हो आप, ये दिस इज समथिंग जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। सो नाउ अंडरस्टैंड, आपका पैशन आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन सोचो, क्या घर छीन सकता है? यस। गाड़ी छीन सकता है? यस। पैसा? यस, छीन सकता है। लेकिन आपका अंदर का जो अंदर से निकला हुआ जो जुनून है, जो पैशन है, जो जिसे कहते हैं मीनिंग है, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। दैट इज योर पर्सनल थिंग, नोबडी कैन टेक अवे। और ये जो मैं बुक बता रहा हूं ना आपको, इसमें ये इट इज प्रूवन दैट इन दैट कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जो सबसे ज्यादा भयावह स्थिति थी किसी भी इंसान के लिए, वहां पर भी ऐसे लोग थे जिनको वो
जिनसे वो आशा नहीं छीन पाए, और he came out with a very good conclusion. बहुत अच्छा conclusion. हम कहते हैं रेस, रेस समझते हैं, जाति, हमारे किस किस जाति के, प्रजाति कौन सी है। उन्होंने कहा दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, विक्टर फ्रैंकलिन, 2 तरह के लोग होते हैं बस, एक डिसेंट लोग, एक इनडिसेंट लोग, और ये हर जगह पाए जाते, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी जगह पर ये हर तरह के लोग, ये 2 तरह के लोग हर जगह पाए। थिंक अबाउट दैट। अगर ये चीज, क्योंकि ये चीज कहां से पता लगी, वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कुछ लोग ऐसे थे जो हाईएस्ट पेड डॉक्टर थे, वकील थे, प्रिंसिपल थे, स्कूल के, कंपनीज में काम करते थे, वो सारे के सारे वहां पर एक ही जैसे थे, कैदी। उनका पर्सनलाइजेशन खत्म हो चुका था, सिर्फ नंबर मिलता था। कौन कब मरेगा ये भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि अगर कभी आपने गैस चैम्बर्स का नाम सुना हो तो वहां पर गैस चैम्बर्स होते थे, जब वो मास के मास वो गैस चैम्बर में डालते थे एंड फायर देम अप, तो आपको नहीं पता आपका नंबर कब आने वाला है, वो आशा नहीं थी। लेकिन वहां पर भी उन्होंने देखा, ऐसी सिचुएशन में भी ये चॉइस उनसे नहीं छीन पाया कोई, और इसी चॉइस ने, जिनके पास ये चॉइस थी, जिन जो चॉइस दे पाए, वही लोग जिंदा बच के आए हैं बाहर। सो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम बोलते हैं इसको। नाउ इफ आई गिव यू द एग्जैक्ट वर्ड, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, यानी मेरी लाइफ में मीनिंग क्या है, मैं क्यों हूं यहां दुनिया में। इसलिए आपने बहुत लोगों को सुना होगा, क्या यही करने के लिए हूं क्या मैं। ज्यादातर आप अगर औरतों की बात करें तो क्या बच्चे पैदा करना है या खाना बनाना, बस इसलिए हूं यहाँ पर। या आदमी की बात करें तो सिर्फ कमाने के लिए यहाँ पर। यानी ये सुनते ही आपको समझ में आता है गैप है, मीनिंग नहीं है लाइफ। तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, और ये बहुत बड़ी थेरेपी है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। मैं हूं क्यों यहाँ, बट इसको सिंप्लीफाइड वे में समझें। जिस दिन आपकी लाइफ में वो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का थोड़ा सा पार्ट भरना शुरू हो गया ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना मजा आएगा कि आपको अब लगेगा यस आई एम लिविंग माय लाइफ, चाहे वो कितनी ही डिस्कंफर्ट वाली लाइफ क्यों ना। कैलाश विद्यार्थी की लाइफ आसान नहीं, लेकिन ही इज हैविंग अ मीनिंग, तो रात को नींद आती, एंड ही हैज कंप्लीटली डेडिकेटेड हिमसेल्फ। जितने भी लोग हैं आप सोच के देखें, नॉट ओनली हिम। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हियर, यहां पर हम, अच्छा वो जो मीनिंग और पर्पस है ना, वो किसी की बपौती, यानी किसी का उस पर अधिकार नहीं है। हर इंसान का अपना अपना मीनिंग, पर्पस, पैशन हो सकता है। यू हैव टू फाइंड योर ओन, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कोई क्वालिटी नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है उसका, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन ऐसा जो आपको पुल करे, खींचे वो आप, और आपको दिखाए आपने कहा जाना। और जो एग्जिस्टेंशियल वॉल्यूम बन रहा है, वैक्यूम बन रहा है ना, वो वैक्यूम कम होता जाए। एंड किंशुक, यू आर वन ऑफ द मोस्ट fortunate one here. At this age you are getting all this. I do got this feel thing, fortunate. I got this at the age of 40. Can you believe that? 38 or 35. Many of us here are getting in this their age, but you are getting very early. So whatever it is, जैसे मैंने कहा एज का फर्क नहीं पड़ता, तो हम सब लोग बराबर है उस केस, जब जागो तभी सवेरे वाली बात करते। लेकिन ये जो गैप है ना, और जो लोग जिनके बच्चे हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दें। क्या ये 3 चीजें उनमें हम डेवलप होता देख पा रहे हैं या नहीं? पैशन, पर्पस, मीनिंग। क्योंकि अगर ये 3 चीजें उनमें डेवलप नहीं हो रही है तो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम क्रिएट होगा ही होगा उनके। वी कैन सी दैट कि हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको इन चीजों में। तो हेल्प करने का सबसे अच्छा तरीका है अपना पैशन, पर्पस और मीनिंग सामने लाए।
and then you see कि how it is translated to your kids. So जो आज ये बात करने का मकसद क्या था, बहुत बार ऐसा हो रहा है, लोग बहुत सारी कंप्लेन के साथ आते हैं एंड दे, सो एज अ पर्सनल कोच आई कैन से दैट बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम जिस पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो क्रक्स है, उसका जो जड़ है, उसकी जड़ इन तीन वर्ड्स में छुपी हुई, पैशन, पर्पस, मीनिंग, यहां छुपी हुई है उसकी वो। तो किसी भी तरह का चैलेंज, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, उसको आप अगर बैक ट्रैक करोगे तो आपको पता लगेगा 7 to 80% वो जाके यहाँ पर अटकती है, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम क्रिएट हो, यानी हमारी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंशियल वैल्यू का मतलब है मैं जो क्यों हूं यहाँ पर उसका मुझे पता नहीं, व्हाई आई एम हियर, अस्तित्व, अस्तित्व। हाँ, मेरा अस्तित्व क्या है, अस्तित्व क्यों है, क्या है, वो नहीं पता है। ये जो वैक्यूम है ना, ये बढ़ रहा है। इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा महसूस हो आज के बाद या इसमें भी कि ओके लेट मी फाइंड आउट समथिंग, और जैसे आप वो करने बैठोगे ना तो बहुत सारी चीज दिमाग में आएंगी, बहुत सारी उठापटक होगी, लेट इट बी, होने दो, वो उठापटक बहुत जरूरी है। लेकिन जिस दिन ये चीज मिल गई, चाहे उसमें साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए या 6 महीने लग जाए, जिस दिन ये चीज मिल गई उसके बाद की लाइफ बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट, नॉट फॉर यू ओनली, योर फैमिली, योर सोसाइटी, your country and the complete human race. सोचिए जितने ज्यादा लोग पैशनेट और मीनिंग के साथ चल रहे होंगे, उतने कम लोग एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम में होंगे, और उतने ही ज्यादा लोग अपने चारों तरफ ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे होंगे एंड सी द माहौल। तो ये जो नेगेटिविटी है, ये जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये जो हम प्रूव करने लगते हैं, ये सब चीजें से ऊपर उठ जाओगे आप। सो इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। सो that's why I want to put that thing in front of you, because जो कोचिंग सेशंस होते हैं वो भी मीनिंग सेंटर्ड कोचिंग क्यों है, क्योंकि लाइफ में मीनिंग की तरफ जाना हमारा पहला मकसद होता है, और अगर वो दिशा मिल भी गई ना तो आप समझिए कि आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। So that's what I want to convey to you today. And I wish कि चीजें सिर के ऊपर से नहीं निकली होंगी। I wish ये किताबी बातें नहीं हैं। जो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से हैं वो समझते हैं कि हम जो भी बात यहाँ करते हैं वो सारी बातें प्रैक्टिस्ड हैं, सारी बातें ऑन ट्रैक पे हैं, एंड वी आर नॉट इम्यून टू, गलतियों से इम्यून नहीं करते हम। और ऐसा मैं कभी नहीं कह रहा हूँ गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होंगी और ज्यादा होंगी बाय द, क्योंकि गलतियां उससे नहीं होती है जो सेफ बैठता है। कुछ करोगे तो गलतियां होंगी। सो किसी ने बड़ा अच्छा साफ तौर पे कहा था कि अगर कोई इंसान मुझे बोलता है ना मेरे से गलतियां नहीं होती, तो मैं समझ लेता हूं इसने कुछ किया ही नहीं। सोचिए, कुछ भी नया करूंगा, आज मैं कुछ भी नया करूंगा, मुझसे गलती होगी, और अगर मैं गलतियों से डर गया, मैं नया करूंगा ही नहीं। इसलिए गलतियों से, मिस्टेक से घबराइए मत। दैट इज शोइंग दैट यू आर डूइंग समथिंग। चाहे कितनी बड़ी एज क्यों ना हो, मैं सोचूं आज मैंने बहुत पढ़ लिख लिया, ये कर लिया, बट इफ आई गो समवेयर व्हिच इज न्यू फील्ड, so suppose if I'm going to a energy field or energy psychology field which is new or better, I have to learn it, और लर्निंग के बाद मुझे उसको प्रैक्टिस करनी है, गलतियां होंगी, लेट इट बी। इसको बोलते हैं फेलिंग फास्ट, यानी जितनी जल्दी गलतियां करनी है कर लो, बिकॉज सीखोगे आप वैसे ही, राइट। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, किसी ने एक दो लोग बात कर रहे थे, तो उसमें एक मास्टर था, ये मार्शल आर्ट का मास्टर, मार्शल आर्ट समझते हैं, कराटे, जूडो कराटे मास्टर, मार्शल आर्ट, राइट किशोर, यू नो मार्शल आर्ट ऑफ कोर्स। तो उनके शिष्य ने गुरु से पूछा कि सर जो आप करते हो ना, उसको अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो कितना टाइम लगेगा मेरे को ये सीखने में, जो आप करते हो उसमें मुझे कितना टाइम लगेगा सीखने में? तो उन्होंने बोला 10 years, 10 साल लग जाएंगे। He said, okay, 10 साल तो बहुत ज्यादा बता दिया आपने, मान लीजिए मैं डबल प्रैक्टिस करूं, डबल तेजी से काम करूं, डबल सीखूं, तो कितना टाइम लगेगा? तो he thought some time and said 20 years. So are you getting it?
It's not fast. It's not कितनी जल्दी. It's not आज अभी. No race. Every one of us is running their own race. हर एक का अपना तरीका है, अपनी चाल है, अपना स्टाइल है, अपनी स्पीड है. But the question is, are we on the right track? ट्रैक सही है ना? सो ट्रैक अगर मीनिंग, पर्पस और पैशन की तरफ का है तो स्पीड से, चाल से कोई मतलब नहीं. यू कैन बी स्लो, यू कैन बी फास्ट, व्हाटएवर, बट इन दिस ऑल फील्ड इज स्लो इज फास्ट. लाइक इन रिलेशनशिप में हमेशा स्लो फास्ट होता है, एंड फास्ट इज स्लो, राइट? सो यस, व्हाटएवर यू हैव गॉट आउट ऑफ दिस, आई होप दैट हम लोग कम से कम एक कोशिश, एक जेन्युइन कोशिश तो कर सकते हैं अपनी पैशन, पर्पस और मीनिंग के लिए. सो ओके, नाउ आई स्टॉप हियर बिकॉज दिस इज समथिंग, time is also been there. So first of all, I really thank you all because you all are on video and we are talking and you are listening. Maybe you are thinking, but सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा. We have to do something. Now, after having this 1 hour conversation or 1 hour 20-minute conversation, what's in your mind right now? Would you want to convey something? कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? आज की डेट में जो हमने बात की उसके बारे में कोई चीज दिमाग में आती है? क्या लगता है आपको? इफ यू वांट टू से समथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम. यू आर मोस्ट वेलकम. सर एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में. हाँ श्वेत. क्या कभी ऐसा होता है व्हेन वी डू अ थिंग रिपीटेडली? जैसे मुझे क्या है, रीडिंग का बहुत शौक, बट अभी शायद मैंने साल 1.5 में, जब से स्पेशली कोरोना काल स्टार्ट हुआ है, आई हैव डन सो मेनी रीडिंग, सो मेनी लर्निंग, कि अभी फॉर टाइम बीइंग ऐसा लग रहा है कि मैं अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ. अभी जैसे ये मैंने टैपिंग सोल्यूशन ले रखी है खरीद के, पर ना मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ पढ़ना. तो इट इज लाइक, एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे सैचुरेशन पॉइंट नहीं हो गया है. 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा लर्निंग, बहुत ज्यादा रीडिंग. मैंने रीडिंग तो मतलब बहुत ही ज्यादा, मैंने अपने जितना कैलिबर थे उससे बहुत ज्यादा रीडिंग किया, क्योंकि दूसरे भी काम रहते हैं, स्ट्रेस भी रहता है थोड़ा बहुत डेली लाइफ का. तो उसमें अब ये जो है, ये स्टैग्नेशन है, इसको मैं ब्रेक कैसे करूं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि स्टैग्नेशन आता है क्या, और ये जैसे रीडिंग का आ गया आपके अंदर, ऐसे ही हमारा तब भी आ जाता है जब आप बहुत सारी वीडियो देख लेते हो, मोटिवेशन वीडियो इतनी सारी देखते हो कि अब आप देखते डिमोटिवेट हो जाते हो मोटिवेशन देख के. सो यू नो, ये सैचुरेशन पॉइंट आता है. क्यों आता है इसको समझिएगा. इसलिए आ रहा है क्योंकि हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, देखने के लिए देख रहे हैं, उसमें से कुछ कर नहीं पा रहे, एप्लीकेशन नहीं हो पा रही. सो क्या हो रहा है, आप इसको इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी बोल देते हैं. आपने एक बुक पढ़ी, आपको अच्छी लगी, आपने कहा बहुत कुछ करना है, इतने में आपने दूसरी बुक पढ़ी, उसमें भी अच्छा लगा, आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन करने की स्थिति नहीं बन रही बिकॉज लग रहा है इतना सब कुछ करना है तो उसके लिए टाइम कहाँ. सो देखना, पढ़ना, सब में आपको ऐसा महसूस हो रहा है, एक्शन नहीं हो पा रहा किसी भी चीज के ऊपर. सो यू आर राइट, सैचुरेशन पॉइंट, ये मेरे साथ भी हुआ और किसी साथ भी होता होगा. सैचुरेशन पॉइंट आता है. जैसे सैचुरेशन पॉइंट आ गया है ऑनलाइन मीटिंग्स के अंदर. अब आप मीटिंग पे जाते हो, वर्कशॉप होती है, आप बैठ जाते हो वहां जाके, अच्छा जी एक और, इतने पक चुके हैं लोग, जिसे बोलते हैं ना पक चुके हैं, ऐसे ही रीडिंग से पक जाते हो आप, पढ़ जाते हो. नाउ इसको तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है श्वेता, और वो है एक्शन विद वन लर्निंग ऑफ अ बुक which you really like to. So book को भी अभी क्या है, सब कुछ छोड़ के साइड में रख दीजिए and sit and talk to yourself कि मुझे लाइफ में, वो पैशन, पर्पस और मीनिंग वाली बात करें, वो क्या हो सकता है मेरा. अब आप खुद से बात करते, आपने बुक साइड में रख दी, अब आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज माय पर्पस, आई डोंट नो व्हाट इज माय पैशन, तो लेट मी फाइंड इट आउट फर्स्ट. इसमें मुझे क्या, कौन हेल्प करेगा, इसमें मुझे कौन हेल्प करेगा. वो बुक मैंने एक पढ़ी थी ना, उसमें बोला था लेट मी गो बैक टू इट.
Yes, Rashmi, you can, please. Thank you very much for being here. And all the best. Yes, Good sir. night. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Bye-bye. Good evening to Shweta. all. Yeah. See later. you next Next Friday. session. Yes, yes. Bye. Thank you so much. Bye. So, श्वेता, अब आपने क्या किया? मुझे पैशन और पर्पस ढूंढना है, उसमें मुझे कौन सी बुक हेल्प करेगी? सो नाउ अंडरस्टैंड, जो मैं करना चाहता हूं उसमें मुझे कौन सी बुक हेल्प करेगी, ये अलग चीज है, रादर देन आई एम रीडिंग एंड आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू एंड मुझे क्या करेगा। तो ये जनरल रीडिंग हो गई। जैसे आप एक लाइब्रेरी में गए, उसमें लाखों बुक्स हैं और आपको पता ही नहीं मैंने क्या पढ़ना है, तो आप वहां टेबल पर बैठ जाते हो और कोई भी मैगजीन उठा लेते हो, पन्ने पढ़ते हो आप उसके, आपको अच्छी लगती है, नेशनल ज्योग्राफिक दिख रहे हो आप, शेर, चीते, ये सब कुछ अच्छा लगता है। दूसरी आपने कोई इंडिया टुडे उठा ली, यू डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन एक बंदा है जो अपने किसी थीसिस पे काम कर रहा है, राइट? वो सीधा लाइब्रेरी में जाएगा, उसी पर्टिकुलर जगह पे जाएगा, एक पर्टिकुलर बुक ढूंढ रहा है उस राइटर की, उस बुक को निकालेगा और उसके अंदर पढ़ के नोट्स बनाएगा, राइट? फर्क देख रहे हो लाइब्रेरी में जाने वाले का? एक बंदा गया टाइम पास के लिए, बोर हो रहा था बेचारा, और दूसरा गया विद पर्पस। सो तोड़ना कैसे है इसको? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, पहले बैठो और ये फाइंड आउट करो कि ओके, लेट मी डू समथिंग व्हिच इज एडिंग मीनिंग टू माय लाइफ। और अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो फाइंड आउट कौन सी ऐसी बुक है जो मुझे हेल्प कर सकती है। जैसे अगर मैंने आपको बताया विक्टर फ्रैंकलिन की बुक है, अब कुछ लोग उसको देखेंगे, अपने पास रख लेंगे, लेकिन जैसे टैपिंग सॉल्यूशन आपके पास आई, नाउ टैपिंग सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक था कि जब आपको नेगेटिव इमोशन आए तो उसको दूर कैसे करना है, वो आपको टैपिंग हेल्प करेगी। अब आपने टैपिंग सॉल्यूशन खोली, सीधा इंडेक्स पे गए, इंडेक्स पे जाके आपने देखा कि इसमें कौन सा चैप्टर आज की डेट में मुझे हेल्प करेगा, नॉट द बुक, कंप्लीट बुक। तो आप सीधे उस चैप्टर पे गए, चाहे वो 150 पेज है चाहे 160 पेज है, और आपने वहां स्टेटमेंट देखी, एक ही स्टेटमेंट ने आपकी पूरी चेंज कर दिया, एंड द बुक इज क्लोज, यू स्टार्टेड डूइंग दैट। सो बिल्कुल सही कह रहे हो, सैचुरेशन हो जाता है। लेकिन अगर ये बुक्स दे बिकम योर हेल्पिंग हैंड रादर देन द so book is not they are the vehicle to reach you somewhere, you know, आपकी गाड़ी नहीं है ये, गाड़ी ये आपका मकसद नहीं है, बुक्स पढ़ना मकसद नहीं है। बुक तो इसलिए पढ़ रहे हो आपको हेल्प करेगी जहां जाना चाहते हो, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं मैं कहां जाना चाहता हूं तो मैं कोई भी बुक उठाऊंगा, नॉवल की तरह पढ़ूंगा, नॉवल की तरह पढ़ता हूं। सो इस पैटर्न को तोड़ने का एक ही तरीका है, गो फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू अचीव। नहीं मिलता है तो ऐसी बुक्स पढ़ो जो आपको हेल्प करें, और उसमें से एक या दो चीज लेके स्टार्ट वर्किंग ऑन। नहीं तो सैचुरेट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आई एम विद यू, बिकॉज ये मेरे साथ भी हुआ था और लोगों के साथ भी होता है। बुक रीडिंग इज नॉट फॉर रीडिंग, इट इज फॉर अप्लाइंग समथिंग व्हिच इज हेल्पिंग यू इन योर जर्नी, राइट? एंड देन यू कैन शेयर योर दिस थिंग आल्सो, राइट? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, Shweta. Thanks for asking. I Yes. also want to say something regarding Yes, Megha. this. Yes, Megha, please. I also heard the last time Friday session, or I missed it, so I heard it again. It was about reading, and I also had something to share about that. It is Yeah. true that sometimes we read the whole book and we feel कि इतना सारा पढ़ लिया हमने और हमने तो book पढ़ ली है, but you don't feel any satisfaction out of reading that book, because after some time you forget what you have read because you have not applied it. तो मैंने भी पिछले कुछ दिनों से पहले आई स्टार्टेड रीडिंग 2 बुक्स, उसके बाद आई फोकस्ड ऑन 1 बुक। तो उस एक में से एक चैप्टर को लेके भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पा रहे हैं, बिकॉज जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे हमारा मीनिंग ही खत्म हो जाएगा उस बुक को लेके। अभी तक जितनी भी रीडिंग्स तो बहुत करी हैं, लेकिन एप्लीकेशन नहीं किया है अगर, so all that has gone because when with the family and with the responsibilities, everything comes at that level that you don't have time, and you always keep complaining that you don't have time for this, but actually we don't need to read so much. Already we don't have time because it's always given, energy and time is given to the family and duty commitments, but from that also, if we just get satisfaction, we can get satisfaction from reading just 2 pages if it is applied to somebody in my personal life or in professional life related to somebody, then I think it can help. Otherwise,
anyways there is no time to read the entire book. I mean, I for now in this scenario, personally me, I can't read so much. I don't even have stamina to read because my involvement is with other things also. So I think that is also okay if even if half an hour I can give, and that is giving satisfaction Absolutely. rather than sitting in a library and reading and You're reading right. and reading. You're right. You're absolutely right. बट इसके अंदर एक चीज और जोड़ता हूँ, जो मेगा ने कहा उसमें जोड़ता हूँ, आप कोई ऐसी फिल्म का नाम बता सकते हैं जिससे आपको कोई इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिली हो? कैन यू गिव? Shadows in the Sun, Scorpion. Like I try to grab everything that I can from everything possible. So that's my approach. Okay, that's good. Pooja? Sir, like Chak De India, it's like inspirational movie, and all about the like Rashmi recent movie आई है सर, वो वाली, तो ये सब थिंग मुझे इंस्पिरेशन देती है. Okay. श्वेता, any movie? सर बहुत सारी मूवीज तो नहीं देखती, लेकिन एक स्वदेश मूवी बड़ी अच्छी थी. Yep. देश है मेरा, right. मेगा, आपकी कोई मूवी? सर आजकल बच्चे देख रहे हैं शेरशाह, तो वो ही है मेरी तो. Okay. Now understand it. मूवी जब पूरी देखते हो 3 घंटे की होती है, राइट? 3 hours. उस 3 घंटे में अगर 3 मिनट की चीज आपको पसंद आती है तो वो आपकी लाइफ बदल सकती है. लेकिन आप मूवी देख लेते हो 3 घंटे, वो 2 घंटे 57 मिनट बेकार जाते हैं. मतलब आप जस्ट एंजॉय कर रहे हो, वो 3 मिनट या एक लाइन उसमें से ऐसी आती है जो आपको उस पर्टिकुलर टाइम में खींच सकती है. तो होता क्या है, जब हम बुक पढ़ते हैं, जब आप बुक पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता किस पेज के ऊपर कौन सी लाइन आपके लिए बनी हुई है. यू डोंट इवन नो दैट. सो आप कैटेगराइज भी नहीं कर सकते. सो मेगा की चीज पे आ रहा हूं मैं. समटाइम्स वी डोंट इवन नो व्हाट इज हिडन वेयर. इसीलिए ये कहा जाता है कि हैबिट बनाइए पढ़ने की. फॉर एग्जांपल, जैसे मेगा ने कहा पूरा पढ़ने की होती है, 15 मिनट आधा घंटा डेली की हैबिट. सोने से पहले हम पढ़ते हैं या जब भी टाइम मिलता है हम पढ़ते हैं. 15 मिनट आधा घंटा डेली मैं कुछ पढ़ रहा हूं, राइट? जो मेरे को लगता है कि मेरे को हेल्प करेगा वैसा. और आपको नहीं पता है कौन सी चीज कहां आपको हिट कर जाएगी. और दूसरा, जब सारी बुक्स हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हम अप्लाई करें, तो वो भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप सारी बुक्स को इकट्ठे अप्लाई नहीं कर पाते. आप एक छोटा सा अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आपको रीइंफोर्समेंट हमेशा चाहिए. रीइंफोर्समेंट कैसे चाहिए? मुझे बार बार वो चीज रिमाइंड होती रहनी चाहिए. जैसे कई बार क्या होता है, एक मेरी ऑडियो बुक है, कोचिंग के ऊपर ही है, मैं उसको अब तक 17 बार 17 टाइम्स सुन चुका हूं. एंड इट इज 25 आवर्स की ऑडियो बुक. 17 बार सुन चुका हूं. और मैं कब सुनता हूं? जैसे ही मुझे अपने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है या रिमाइंड करना होता है, तो आई स्टार्ट लिसनिंग दैट. लेकिन मेरे सुनने का तरीका बड़ा डिफरेंट है. आई ऑलवेज लिसन व्हेन आई वॉक. So by the January, I have already walked 125 kilometers. So पूरे उसका हो चुका है. So I always listen to that thing when I walk. तो दोनों काम होते हैं, लेकिन आपको वो क्या करती है, वो रिमाइंड कराती है. तो मुझे समझ में आता है, जो मैंने पहली बार सुना था उसमें ये भूल गया था, ये नहीं था, ओके दोबारा रिमाइंड हो गया. सो आपकी हैबिट हो गई ना पढ़ने की. आप ये पीछे देख रहे हैं, छोटी सी मेरी बुक कलेक्शन है, पीछे देख रहे हैं आप मेरे पीछे. इट्स अ मिनी वन. ये वो है जब मैं सोते समय जो बुक्स मेरी को हेल्प करती है, वो वाली जो कई बार पढ़ना चाहता हूँ. अदरवाइज मेरी लाइब्रेरी उस तरफ है, इसकी उस तरफ है एक्चुअल लाइब्रेरी. दिस इज नॉट, दिस इज पार्ट ऑफ लाइब्रेरी. ये वो वाली बुक्स हैं जिसको मैं रेफर करता हूँ समटाइम्स. पर ऐसा नहीं है सबको रेफर करता हूँ, बट समटाइम्स वांट टू लिसन रीड टू दैट. हाफ एन आवर आपको पढ़ना ही पढ़ना है. ये आपने रूटीन बना लिया अपने उस पर. शुरुआत में रूटीन आपको तंग करता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपको हेल्प करना शुरू कर देता है. सो कोई भी चीज रिजिड, सो मैं भी सोचता था पहले कि हर किसी के एक जैसा काम करेगा. हर किसी के लिए रीडिंग अलग अलग तरीके से काम करती है. बट एक चीज पक्का है, अगर आप उस रीडिंग में से कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे तो वो बर्डन बन जाएगी. इट बिकम्स अ रिचुअल. फिर श्वेता को जैसे महसूस हो रहा है वैसे जैसे मुझे हुआ था कि यार बहुत बहुत हो गया. वो कहते ना, वो एक कैप आ जाती है उसकी, एंड यू स्टार्ट हेटिंग बुक्स कि यार क्या है, एंड यू जस्ट हैव टू लीव इट फॉर सम टाइम. दैट्स फाइन, ओके, डोंट रीड. बट रीडिंग का तरीका बदलो. इसलिए लास्ट सेशन जो था ना, अगर आपने दोबारा देखना है तो उसको देख लीजिएगा.
रीडिंग का तरीका और रीडिंग से मिलेगा क्या वो समझिए। रीडिंग सिर्फ रीडिंग के लिए भी कर सकते हैं आप, लेकिन रीडिंग से अगर हम कुछ लाइफ में अगर इतना भी अप्लाई कर रहे हैं ना तो उसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है। तो कोशिश करें ऐसा माहौल बनाने की जहां पर आप रीडिंग को एक हैबिट की तरह ले रहे हो। जैसे सुबह उठ के योगा करते हैं, हम चलते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, उसी तरह से बुक रीडिंग कि मुझे आधा घंटा आज पढ़ना है, मुझे 15 मिनट पढ़ना है, और 15 मिनट भी नहीं, मुझे एक पेज पढ़ना है। ये भी एक हैबिट है और धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी आपकी। तो आप कहाँ कहाँ यूज कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेट्रो में चलता था, दिल्ली में था तो मेट्रो यूज करता था बहुत, तो मैं ऑडियो बुक्स का बहुत इस्तेमाल करता था, बिकॉज मेट्रो में आप कुछ नहीं कर रहे थे, गाने सुनो, या आप एक आने जाने में ही आप 4 दिन ऑफिस जाते हो तो आपका पूरा ऑडियो बुक खत्म हो जाता है, एंड यू हैव गॉट एन आइडिया क्या चीज है, आपको आइडिया मिल जाता है उससे। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कहीं अटकिए मत कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही प्रोफेशन। मेगा का अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप सबका अपना होगा, अटकिए मत। लेकिन बुक में से आपको जो मिलने वाला है ना, वो आपको सिर्फ हेल्प करेगा जहां आप जा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो ये देखो। बुक आपको नहीं बताने वाले आपने कहाँ जाना है, वो तो आपको हेल्प करेंगी। कहीं जाना चाहते हो, हाँ जी, कहाँ जाना चाहते हो ऑप्शन देंगी, आपको बताएंगी, लेकिन वो आपको ये डिसाइड नहीं करवानी आपने कहाँ जाना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। सो yes, that's how it works, right Megha? That's how it works. So whatever it is, it's a point, read, but whatever you do, कीप सेंटर जो है ना, वो है आपका पैशन, पर्पस और मीनिंग। उसके चारों तरफ आपकी लाइफ घूम रही है। उल्टा नहीं है कि आपकी लाइफ कहीं भी घूम रही है, आपका सेंटर पर्पस बाहर घूम रहा है। सेंटर क्या है? पर्पस, पैशन, मीनिंग, उसके चारों तरफ घूम रही है। कौन सी जॉब करनी है, कैसे व्यवहार करना है, क्या चीज करनी है, वो सारी चीजें इससे गवर्न होनी चाहिए। जिसी को बोलते हैं लिविंग इनसाइड आउट। हमारा जो ग्रुप बना हुआ इससे बना हुआ है ना, ये इनसाइड है आपका, इससे बाहर की तरफ जी रहे हो आप, ना कि बाहर से अंदर की तरफ जी रहे हो। तो सेंटर पिलर तो होगा आपकी लाइफ का कोई, वो सेंटर पिलर वो होता है पैशन, पर्पस। फिर आप ढूंढो कैसी जॉब, उस जॉब से क्या, कौन सी किताबें पढ़नी है, किस तरह के लोगों से मिलना है, क्या जाना है, वो उसके बाद आता है। सेंटर पिलर को ढूंढने का जो काम है वो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द सेंटर पिलर ऑफ माय लाइफ, एंड दैट विल हेल्प, एंड देन यू कैन शेयर एक्सपीरियंस, राइट? That's wonderful. Thank you, Megha, for that. Okay, Pooja, you want to say something? First of all, thank you for this meaningful, sir. इसकी तलाश होती है सच में, अगर ये नहीं रहता है तो हमें पता ही नहीं होता है जाना किधर है। Right. Because if we are not meaning in our life, तो कोई मतलब ही नहीं बनता सर। बिकॉज क्या होता है उस टाइम में, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, सब कुछ आ जाता है, कंफ्यूजन यहाँ तक आ जाते हैं। Yes. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सर, आज मुझे जानने को मिला है, तो मैं इसे अप्लाई करूंगी और फाइंड आउट करूंगी कि मेरी लाइफ की मीनिंग क्या है सर। बिल्कुल फाइंड आउट करो और शेयर करो ग्रुप के साथ Yes. कि मैं उस रास्ते पे हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे चुपके जाते जाएगा, वो प्रोसेस है, राइट? लेकिन कम से कम उस दिशा में चल तो पड़े। Yes, sir. कोई और आपको नहीं Actually- बता सकता कि आप गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ का मकसद आप जानते हो, वो नहीं जानता है। Yeah. और वो कितना भी उसको अजीब लगे, किसी दुनिया को कितना भी अजीब लगे, वो अजीब लगने दो। आपकी लाइफ का पर्पस आप जानते हो, एंड दैट इज गुड टू यू। उनसे कोई मतलब नहीं है उसका। सोसाइटी गाइड करेगी आपको, पेरेंट्स गाइड करेंगे, टीचर्स गाइड करेंगे, लेकिन वो सिर्फ गाइड ही करेंगे, अपने हिसाब से गाइड करेंगे आप। लेकिन आपके अंदर से जो आवाज आ रही है ना, एक बार उसको खुल के बाहर आने दो, राइट पूजा? Sure, sir. Yes, sir. And try it and then share. Yes, Megha, you were saying something? Sir, I wanted to share this about passion, purpose, and meaning. This is a very good concept. Actually, many times we have discussed about this in meetings also. Yeah. And today again, this topic has, as you have chosen to be talked about in this session. So some more clarity I got in this. That meaning could be of two, I mean, passion, purpose, and meaning, they're different things. And interest and hobby is completely different from these. And in these, purpose and meaning hold a higher purpose than passion, I think. Yes. Because passion will keep you alive, because you need colors in life.
Because life becomes gray and black and white. That life cannot be, you cannot be happy. Yeah. So for that, passion is needed, and purpose and meaning is a higher level. It's a very high level. So this purpose and meaning, passion we need because we are raising kids, we are growing up with them, we also become kids with them. That is important to become, to add colors in life, because without colors, we cannot make a happy parent or a happy family person if we are into family. But in passion and purpose and meaning, there can be two kinds of purpose and meaning, I think. One can be worldly, another can be spiritual. And that this is my very, very long awaited question. Though questions, I write them also, I lose pages also where I've written. I mean, obviously it's written in diaries and all, but then again this has come, so again the question has come from inside me. I understand. That it could be worldly as well as spiritual. I have kids now. What is the purpose? Why God has given the kids to me? Is it to tell them that there is a higher power than the energy that we see around? Like there is a higher energy than us, that we are working, that we are trying, but things are not happening the way we want them to happen. So there is a higher purpose in life, and there is something known as God or higher energy. So it is to tell them that, though they are very small to understand that right now. So is that my purpose, or is it the worldly purpose, or it is the mixed path of both? I mean, where is Yes, it? sir. So I feel very confused in this purpose. Is it my spiritual because I go in that because I can't live without that? So what is it? Like, is it a mixed purpose? What is it? Wonderful. So Megha के question हमेशा बहुत अच्छे होते हैं. So what we do, Megha, because the time is up, what we do, we can keep this question for the next session itself, right? In next session also we'll address that question. It's a very, very important question, right? कि मेरा पर्पस, वो दो तरह के पर्पस जो आपने बताया ना, स्पिरिचुअल और वर्ल्डली. और अगर हम देखें तो इसके बीच का एक पार्ट होता है जो हम अगली बार बात करेंगे. इन दोनों का मिक्सचर है वो जो हम बात कर रहे हैं. इट्स अ मिक्सचर, बिकॉज वो आपको दिखता कब है और आपके साथ होता क्या है, वो मिक्सचर है. और जब वो आ जाता है तो आपकी लाइफ का एटीट्यूड कैसा होता है, आपका तरीका कैसे होता है, वो भी बदल जाता है. तो आपको समझ में आता है कि मेरे को वो पर्पस मिल गया. क्योंकि स्पिरिचुअल तक जाने के लिए आपको वर्ल्ड से होके ही गुजरना पड़ेगा. आप उसको कवर नहीं कर सकते. मतलब यू कैन नॉट गो लाइक दिस. ब्रिज नहीं है वो, इट्स गोइंग इन बिटवीन दैट. और एक्चुअली में डेली जो हम जी रहे हैं, जिस दिन वो डेली स्पिरिचुअल बन जाता है, डेली स्पिरिचुअल बन जाता है, उस दिन ये दोनों मर्ज हो जाते हैं. हर चीज जो आप कर रहे हो वो आपको आपके पर्पस की तरह लेके जा रही है, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि, सो वी विल टॉक अबाउट दैट, नॉट एन इशू, बट इट्स अ वेरी, वेरी गुड क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन, राइट श्वेता? नेक्स्ट टाइम वी कैन टॉक अबाउट दैट ओनली. शुरुआत इससे करेंगे, अगली बार हमारा टॉपिक भी होगा. विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई विल नॉट फॉरगेट इट. अगर मैं भूल जाऊं तो मेरा याद दिला दो, बट इट्स इंपॉर्टेंट. और अगली बार हो सकता है तुम्हारा ये क्वेस्ट थोड़ा सा सॉल्व हो, बिकॉज ये तुम्हारा ही नहीं था, मेरा भी था, बाय द वे. सो ये कैसे खत्म हुआ वो मैं शेयर करूंगा. हो सकता है उससे तुम कुछ हेल्प. I feel really confused in this right now. Though I know it is a mixed purpose, but I don't think about it. I'm getting your But point. fun has to be integrated with the purpose. Absolutely. And तो एक्चुअली में वो क्या, मुझे जो समझ में आया वो क्या आया था, उस दिन के बाद क्या हुआ, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा. एंड यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली ओके. हो सकता है वो आहा मोमेंट हो. कई बार क्या होता है, वो आहा मोमेंट 1 मिनट में सॉल्व कर देता है, सारी क्लैरिटी ले आता है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं फंसी होती है हल्की सी बात. बट दैट्स गुड, यू आर ऑन द वे. वंडरफुल. सो विल टॉक अबाउट दैट. यस श्वेता, यू वांट टू से समथिंग? ओके. यस किंशुक. सो इट इज अ डिफरेंट टॉपिक टुडे, लेकिन ये आना इसलिए जरूरी था बिकॉज हमारे जो भी एक्शन हो रहे हैं ना, स्पेशली इन द ग्रुप या कहीं भी, वो सारे के सारे एक्चुअली में दे आर गवर्न्ड बाय दीज 3 थिंग्स, पैशन, पर्पस एंड मीनिंग. इनसे गवर्न होते हैं, राइट? जो भी हम कुछ करते हैं. तो इसलिए ये टॉपिक बहुत जरूरी था. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग यहाँ स्टे किए, आपने सुना इन चीजों को, आपने अपनी चीजें सामने रखी. नेक्स्ट वीक we will come with another topic also which is very close to my heart. And also मेघा ने जो बात की है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्टीमेटली ये जो द्वंद है, ये जो लड़ाई है ना, ये हम सबके बीच में चलेगी ही चलेगी, बिकॉज ये आने ही वाली है. तो जिनके साथ नहीं आई वो आएगी, और जिनके साथ आ चुकी है वो झेल रहे हैं. तो अगली बार हम उसकी बात करेंगे कि आखिर इसमें कहां पर इक्विलिब्रियम बन सकता है, कहां बैलेंस क्रिएट हो सकता है, राइट?
So तब तक के लिए next Friday के लिए thank you so much. We are meeting on next Friday, and we are connected on WhatsApp. Whatever you want to ask, share something, you can put that in. This complete session is again going on the YouTube. If you want to see again, you can watch it, and if you miss something, you can take it out, right? So thank you so much. Thank you, Kinshuk. Thank you, Megha. Thank you, Pooja, and thank you, Shweta. Head Springs. Thanks a lot, Thank you, sir. sir. Thank you a lot. Thank you, sir. Bye bye. See you then.